Namaste everyone, good afternoon. For a change, we are saying a good afternoon and not a good morning. Normally, we try and bring you the Dekho Apna Desh webinar series on Saturdays at 11 a.m. And today we are going at a very different time because we wanted to wake you up. We don't want you to get used to one routine every time 11 a.m. Saturday. So this was the best way. We said, have a nice lunch, sleep for a little while, and then come back to your beautiful, incredible India. So today's session is going to take you not only to incredible India, but it's actually going to take you to three incredible Indians. And last month, we started with this episodes in collaboration with the Association of Indian Universities. And we wanted to reach out not only just to citizens, which of course is one part of it, but also an important part of the way we reach out is to the students, the young minds of India. Because you young Indians are the Indians who are going to carry the 21st century India truly forward, because all of us are working towards making sure that you have an incredible India in times to come. So as we hang our boots, you're the ones who are really, really going to take India forward in this century. Now, as you go forward, as you learn about science, technology, and whatnot, you certainly do need to remain very rooted in your own heritage, in your own culture, because after all, India is thousands of years old, and yet India also powers the Chandrayaan today. So there's so much happening, and so we want you to learn the new India, but we also want you to remember your incredible India. And joining us in this journey today, I'm first going to call my collaborator, my co-conspirator, and someone who helped to actually think of this idea is Dr. Pankaj Mittal. Pankaj, before I introduce the panelists the way we are going to go today, how about you saying something to all the wonderful people who've joined in? Thank you, Rabindraji. Thanks a lot. I am Pankaj Mittal. I am Secretary General, Association of Indian Universities. And as you all know, Association of Indian Universities is an association with about 854 universities. And we do indulge in academics, research, sports, and cultural activities for the university students, because we believe that the holistic development of the students is very, very important. So we are so happy to join with Ministry of Tourism in this program, in which we are trying to have 12 episodes, means one episode every year, to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav. And our purpose is that we should be apprising our youth, which is something like 3.7 crore students in our universities and colleges, about the grand Indian narrative of India, like how good India is, what its culture is, what its tourism destinations are. So therefore, we had a lending hand from the Ministry of Tourism, and who were gracious enough to initiate this series, 12 series for the year, in which we will be apprising you all of the great Indian heritage. And today, just to know about the adventure part of India, we have with us three mountaineers. One is Mrs. Santosh Yadav, who is the first women in the world to climb Mount Everest twice. We have Ravindra Kumarji with us. In spite of being a civil servant, he could be he has scaled the Mount Everest. And we have with us Mr. Atul Kanwal. He is an IPS officer, but still he had the passion to scale the Everest. So let us together celebrate this adventure. And we'll be having a webinar in which all the three experts of ours will be sharing their experiences. And based on that webinar, a quiz will be there in the end of the program. And in the quiz, if you answer the quiz rightly, the first 1,000 prizes will be there. But in any case, everybody will be getting a certificate. So let me request Rubinderji to start the webinar. Thank you, Dr. Pankaj, for setting the tone. And yes, you are going to get your prizes. So the 1,000 first fastest fingers giving the right answers will get the prizes. So do listen very carefully to all the three panelists, because the questions are going to flow out of the conversation that we're going to have with them. So with my, that submission and suggestion, keeping your eyes and ears and your minds open, I'm going to introduce to all of you our first very special guest for the day, for the afternoon, Mr. Atul Karwal, a 1988 batch Indian police officer. You can see him on the screen, donning his uniform, looking very, very the policeman, defining India in so many ways.
And what is so nice in introducing you, sir, today is that, yes, we are introducing you as an IPS officer of the 88 batch who's donned his police cap for so many reasons and has not only led the Gujarat force, which is his parent cadre, but he's actually been to Srinagar and he's held so many of the counter-terrorist operations and law and order. But we'll have that conversation another day about all that, because today is not the forum for that. But also, and what is so very special about this very special guest for us today afternoon is that if you thought that he's that hard cop and only doing mountaineering, I have so much pleasure in introducing the fact that he also learns Indian classical music and he also loves to cook, and I don't know what else. He does scuba diving, he goes cycling, he is a marathoner, and the list just goes on. So that's why I said, these are our incredible Indians. And so, sir, welcome on this platform. It's such a privilege to have you with us today. Thank you very much, ma'am. I'm grateful for this chance of interacting with all of you. And special regards to Satosh Yadav, ma'am, whom I have had the opportunity of seeing today. And I'm grateful for that as well. So if you permit, should I start? I just want to tell one thing to everybody who's joined in here, the young students, sir, because they really get motivated for times to come, for people like you. I must tell all of you that Mr. Atul Karwal was adjudged as the best officer trainee of his batch during the training that he was undergoing as a probationer in those times. And today, he is the director of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy in Hyderabad, and that's where he is joining us from. So I think it's a matter of so much pride, sir, that you were adjudged the best officer trainee, and today you are yourself heading that institution. And I also must share with all of you that he was awarded the Police Medal for Meritorious Service, the President's Police Medal for Distinguished Service, the Police Medal for Gallantry, and the list just goes on. So viewers, look up Wikipedia and follow Mr. Atul Karwal for such a lot of things that he's doing. Now, sir, you can do what you are here to do today, to go on the Everest with you. Thank you very much, ma'am. So my respects to all the people who are logged in, all the youngsters. And I feel very fortunate to be here, ma'am, as head of the academy here, from where I passed out so many years back. That's one of my plethora of blessings. So without spending more time on that, I'll straight away go to share my screen. If I can be allowed to share that, great. Sure, sir. Yes, desktop. Can you see this, please? Is it? That's we can. Perfect. So I'm going to take you on a journey, though short and not so cold, to the top of the world. This is how it looks like from Camp 2. When you climb from the Nepalese side, you can't see the summit directly. But once you reach Camp 1, then you can see this. So this was discovered almost about 101 years before it was climbed. 1852, they surveyed, found this mountain. 1856, when they calculated, it was seen to be higher than Kanchenjunga, which was till then supposedly the highest peak in the world. And this was called Peak 15, before they finally named it after Sir George Everest, contrary to all the protocols, because it had local names, Sagarmatha in Nepalese, in Nepal, and Chomolungma in Tibet. Going ahead, when I got this offer of joining a team which was going from the police for the very first time to attempt Mount Everest, this is back in 2007. I was told I am not fit to be part of the team because I have not done any training courses. So I quickly went and did the basic course, basic mountaineering program in the Nehru Institute of Mountaineering, probably the best institute that we have in India for mountaineering. And they take you to a very interesting place for training, especially snowcraft and icecraft. It's called Dokrani Bamak. Bamak in local language means glacier, and Dokrani is the name. So Dokrani Bamak was where I learned how to negotiate ice and snow. This is how the Nepalese view it. Most mountain dwelling people look at the mountains as a abode of the gods, and they see her as a goddess as well. So do many of us who have been there. In reverence, with all humility, she is like a goddess to us. Well, this is the route of the climb. From the bottom, if you see, the base camp is 17,500 feet. We spent 6 weeks here acclimatizing
doing successive climbs and coming back every time, and then move on to eventually when we climb, this is the route that is followed, Camp 1, Camp 2. You can see the heights mentioned against each of these camps. Camp 4 at 26,000 feet called South Col. And interestingly, the climb to the summit from South Col is done in the dark. So we start in the evening and we climb through the night to reach the summit in the morning and then get off the mountain. And the reason for that, which I might reiterate further in the story, is that Everest makes its own weather and afternoons can be very stormy. So the protocol is that you climb through the night, you reach the summit in the morning, and you come back out of the danger zone by afternoon. Otherwise, so many deaths have taken place. People who have not hindered or heeded that advice. This is the base camp, 17,500 feet. We spent 6 weeks here, and all camps, including base camp, are on snow and ice. This is how it looks like. It's on a moving glacier, which is moving a foot a day, the Khumbu Glacier. And sometimes at the back, you can see avalanches happening, which reach a speed of 150, 200 kilometers an hour. It is impossible to outrun them, so you remain out of the way. So nature has right of way here, and you need to respect it. Otherwise, casualties have been caused because of negligence or disregard to the powerful nature and the forces there. Now, this is an interesting picture which I want to describe a little bit. On the left, you can see the west shoulder of Everest. On the right is Nuptse. And in between is the Khumbu ice fall, which we have to cross 10 times, 8 times for going up and coming down for the acclimatization climbs, and once for attempting the summit, and the 10th time for coming back safely. And about 50% of casualties happen in Khumbu ice fall because it's a really dangerous place to be. And this pole that you see in the middle is called Lapso. Now, Lapso is a prayer pole which is carried by the Sherpas, erected there, and our entire expedition of 15 climbers and support staff, we offered prayers to the mountain goddess for success and safety before setting foot on her for the very first time. So this Lapso is our prayer for success and safety to the mountain goddess. Interesting day that day, there was a beautiful rainbow between the west shoulder of Everest and Nuptse. This is the Khumbu ice fall. And if you can really see in the picture, you can see tiny dots of climbers here and here. This takes about 3 to 5 hours, depending on how fit you are, to reach the top edge. This is the crevasse crossing. Crevasses are those cracks in the ice, which can be sometimes dozens of feet wide. And we put these ladders across and then we walk across. This is tricky. And you have to have your mind and energies completely aligned, like in meditation, to be safe while crossing. You can see the top edge. So these cliffs, vertical sections, etc., we put ladders there with the help of Sherpas, and finally route is opened up through the Khumbu ice fall. And this is where many people have got killed. During the earthquake also, which happened a few years back, many Sherpas were killed here. This is the top edge. One of the most beautiful places I have seen. The only minus point is you need to be there to see it, which takes a little bit of hard work. This is Camp 1. The snow plume at the back that you see is not cloud. It is jet streams, very high-speed winds, which are blowing a snow plume off the peak. This is 19,000 feet. We go to the Camp 2, which is at 21,000 feet. This is my picture atop Camp 2. And what we see in the background is the Lhotse face, which is a 5,000-foot high wall of rock and ice where we need to climb, and we do a camp in the middle of it. One of the most dangerous and uncomfortable camps because there's barely any level space there to pitch a tent. And if an avalanche happens from the top, there's no way of escaping it. You can see a long line of climbers going up the Lhotse face to the yellow band that you see, and Everest, it would be to the left. This is our team, the police team, with 15 climbers in our yellow down suits, attempting the Lhotse face. This is Camp 3. It's on an incline, and we have safety ropes from one tent to the other as well, because if you slip, you could fall 2,000 feet, and people have got killed doing that. This is our team climbing
the yellow band. There is some problem with it. Okay, here it goes. We have reached 26,000 feet. That is the south col, which is expensive but dangerous because this is where winds from the north, that is Tibet, cross over into Nepal, and winds can really blow down these tents with people and material inside down the cliffs. So bad weather here can really kill, which it did. In 1996, I think 11 people lost their lives here because of a storm. That's what it looks like. In the evening, when we reached there after an 8-hour climb, this is Camp 4, 26,000 feet. This is how you see the summit, whereas this is not the real summit. This is a south summit and the summit is behind it. Now this is now climbed in the night. So it's a marathon climb of 8 hours to reach this camp. And after that, after a 4-hour break, we do 18 hours more of climbing, 12 hours to the summit and 5 to 6 hours to come back. A quick look at how it looks like when you climb in the dark, because we will climb through the night like this. I'll show you a short video clip taken from the IMAX film on Everest, which was shot on the Everest in 1996. Following Ed's trail. In the night, with my goggles and oxygen mask, I felt like I was on the moon. The others were nearby, but we never spoke. I felt completely alone. All I heard was the sound of my own breathing through the oxygen mask. High on Everest, there is nothing to breathe. There is only 1/3 as much oxygen in each breath as there is at sea level. Most climbers need bottled oxygen up here, but not Ed. You stagger along, every ounce of energy is sucked from your muscles. You just can't get enough air. This is what it must feel like to drown. The sun rose, but whenever I stopped to wait for the others, I got cold, so I had to move on. I climb without bottled oxygen because I like the challenge. It's just me and the mountain. It's as simple as that. Following Ed's trail. That was Ed Wiesters, an American climber who was climbing without oxygen. Going ahead, we reach South Summit, which is altitude is about 20,500 feet. And you can see the time at the bottom, it's almost 7 o'clock in the morning. So from here, when you look towards the summit, this is what you see. You see the Hillary Step. You know why it's called that. Edmund Hillary was the first one to climb it. It's a knife-edged ridge about 40 feet high. And there's a 10,000 feet fall on the left into Nepal and a 12,000 feet fall on the right into Tibet. And ahead of that, you can see towards the top of the Hillary Step is the beginning of the summit ridge, as it is called. And beyond that, this is how the summit of Everest looks like. That day, we were 19 Indians on top, 10 from our team out of 15, and 9 from the Army team, which has also attempted that year. Interesting thing was, out of the 15 climbers in our team, 13 were male climbers and 2 were lady climbers. So out of 13 male climbers, only 8 male climbers made it to the summit. And out of the 2 lady climbers, they both made it. So my take on this is, they were so much more determined and committed. We would leave normally at about 2:30 in the morning. That is how the climbing day would start. And they would leave at 12:30, 2 hours, or even 12 o'clock in the midnight, 2.5 hours ahead of us, so that they complete the climb and not get left behind. And when we started at 2:30, difficult to eat a whole lot of food during that time, but my favorite food used to be sattu. My wife is from Bihar, and that's how I learned about sattu. I'm a Punjabi otherwise. So easy thing to eat was take a big mug of hot milk, put sattu in it, put a lot of sugar in it, make a paste and eat it. And that gives you such a sustained energy for a long, long time. So this is what the summit looks like. On the Tibetan side, there is a sharp fall, but from the Nepalese side, it's a gradual slope till the summit. That's my picture on top.
And I wanted to take all my headgear and my mask off because I wanted to really experience it the way it was. So about half an hour later, we started down. This is the view from the top. That's Kanchenjunga, the third highest mountain in the world, seen far away. Climbing down, weather was already getting bad. This is 9:30 in the morning. There was snowstorm moving in from the north. And about 80% of deaths happen on the descent. So descending is always more dangerous than climbing. This is Camp 4, seen from the top. Now you can see how precariously it is pitched on South Col, and winds can just uproot the tents and throw them down the cliffs. This is the picture at base camp. इसमें आप देख सकते हैं 2 लेडीज हैं, फुलमाया तवांग, जो अपने 3 साल के बेटे को छोड़कर आई थी एवरेस्ट चढ़ने के लिए, और यांगदी शेरपा उनके बाजू में, उन्होंने भी इसको क्लाइंब किया। दोनों लेडी माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर्स थे। एडमंड हिलेरी का बहुत एक अच्छा कोट है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इट इज नॉट द माउंटेन यू कॉन्कर योरसेल्फ, यू कॉन्कर योर इनसिक्योरिटीज, कॉन्कर योर सेल्फ डाउट्स। इसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा कि स्कूबा डाइविंग के बहुत अच्छे हमारे पास स्थान हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, और 70% दुनिया पानी के नीचे है। सो टू सी द वर्ल्ड अंडर द वाटर यू विल हैव टू डू स्कूबा डाइविंग, व्हिच इज अ सॉफ्ट एडवेंचर, नॉट डेंजरस and doesn't even need much of swimming skills. But the things that you see under the water in these 2 places, Lakshadweep, Andaman, are amazing places for scuba diving. So I and my daughters, we all 3 of us dive. This is a sunken ship. World War II का 40 मीटर नीचे एक शिप पड़ा हुआ है, उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं, उसके थ्रू स्विम कर सकते हैं। So I'm just showing you some pictures of the beautiful, colorful and completely quiet world down there. ये फोटो रीफ फिश की है। वी डू नाइट डाइव्स आल्सो, जब आप अंधेरा होने के बाद पानी में सी में उतरते हैं और टॉर्चेस लेके उतरते हैं ताकि आपको मरीन लाइफ टॉर्च से पे देखने को मिलती है, और उसका बिहेवियर रात में बिल्कुल अलग रहता है। यू कैन सी द कोरल इन अ डिफरेंट वे, यू कैन सी द फ्लोरा फीडिंग इन द नाइट। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल फिश, इट वाज लिट अप लाइक जैसे कि दिवाली की रात मना रही हो। ये कुछ और चित्र हैं स्कूबा डाइविंग के। हमने कुछ साइकिलिंग किया, मनाली से ले गए, ले से खाडुंगला चढ़े, उसके कुछ फोटो दिखाना चाहूंगा क्योंकि यंगस्टर्स, आई एम टोल्ड एंड एज आई अंडरस्टूड, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड द लॉकडाउन, साइकिलिंग हैज टेकन अ बिग leap forward. A lot of people are cycling now. So this is what it looks like when we cycle from Manali to Leh to Khadungla. It's really beautiful and the terrain is awesome. It'll take some practice. You must prepare for it. We used to cycle 100 kilometers a day every morning before office. Before we went on this adventure. It takes about 8-9 days to reach Khadungla, and then you can maybe fly out or come back. Some pictures of our Ahmedabad Bicycling Club, which attempted this and really enjoyed it. बहुत खूबसूरत कलर्स और ऐसी टेरेन जो शायद आपको गाड़ी से इतना देखने का मजा नहीं आएगा जितना आप साइकिल पे देख पाएंगे। ले टाउन के पास पहुंच रहे हैं, अब हम खाडुंगला की तरफ चढ़ रहे हैं, तो टाउन छूट रहा है नीचे, एंड दिस इज द रोड टू खाडुंगला एंड we reached Khadungla as a group of cyclists. एक और एडवेंचर हमने किया, हम मानसरोवर गए साइकिलों पे, नेपाल से एंटर किए चाइना में, और वहाँ न्यालम टाउन 12,000 फुट से लेके हम मानसरोवर तक 350 किलोमीटर साइकिलों पे गए। तिब्बत के थ्रू साइकिल करना और खूबसूरत था। रात में हमारा कैंप आप देख सकते हैं, वाइल्ड एसेस हमको दिखे। मानसरोवर लेक, जहाँ बहुत से लोग गए हैं या जाने के इच्छुक हैं, दिस इज अगेन मानसरोवर लेक। And this is the Parikrama of Mount Kailash, Dolmala Pass, which is 19,500 feet high, that has to be crossed. This is Gauri Kund, जिसके बारे में आपने सुना हो शायद, वो मेरी फोटो है इसके सामने। और माउंट कैलाश बहुत बहुत खूबसूरत, और मैं 2 बार गया हूँ, 2 बार मुझे मौका मिला जाने का। कुछ फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ अरुणाचल के और लद्दाख के, जो आपको शायद देख के जाने की इच्छा हो जाए। ये अरुणाचल है, तवांग का एंट्री पॉइंट है। तवांग के उस तरफ बहुत खूबसूरत लेक है, वहाँ के चित्र, बहुत बहुत खूबसूरत राज्य है। मोनेस्ट्री के कुछ फोटोज हैं। मुझे काफ़ी घूमने का मौका मिला है मेरे सर्विस के कारण भी, और कुछ मुझे शौक है तो मैं छुट्टी लेके ऐसी जगह पहुँच जाता हूँ। दीज प्लेसेज आर अमेजिंगली ब्यूटीफुल। कहीं यूरोप जाने की जरूरत नहीं है आपको।
if you want to roam around, see places, India will keep you busy for one lifetime, certainly. अरुणाचल, अगेन आप देखें इतने खूबसूरत कि जैसे आप किसी और दुनिया में पहुंच गए हों. मेचुका, one of the most beautiful places I have seen. आजकल तो हेलीकॉप्टर फेरी चलती है तो बाय रोड जाने की इतनी दिक्कत नहीं होती. ये सोमोरिरी है लेक. सो मीन्स लेक, सोमोरिरी इन लद्दाख. उसके कुछ चित्र आपको दिखा रहा हूं. लद्दाख भी बहुत बहुत खूबसूरत है. Thank you. I finished in 18 minutes. Ma'am, any questions I can reply? Thank you so much, sir. That was as precise as a cop can get. Very, very beautiful places, viewers. I'm sure all of you, I at least am getting the urge that why am I sitting in the office and why am I not there? It is so beautiful out there. Sir, but just getting back to a couple of questions that I have, then I'm going to ask Dr. Pankaj if she would like to ask you something, or Dr. Sekho. But I'm sure you've answered this question zillion times, but I'm still going to ask you that again. How did you find time to do so much? I prioritize when I have an objective like that, everything else falls away. I don't go to any parties. I don't see movies. I don't watch TV. I don't socialize. I don't go to social media. My life becomes single pointed focus. For example, in preparing for the expedition, I have made myself a 25 kilo pack. And in that pack, once in the week, I would carry that pack after office hours from 12 o'clock midnight to 5 o'clock in the morning. I would walk on the city roads with a 25 kilo pack. Or I will go to a tall building, 12-story building, and climb it 15 times, 180 floors with a 25 kilo pack on my back. So I had to find time to prepare like that because a police job is a busy job. Absolutely. And so if that's not inspiring kids, what else is, right? And so I think it's like living to the adage ki jahan cha wahan rah. And question of prioritizing is what you said, and I think it's a huge part that everybody needs to learn, that discipline to prioritize, and what a feeling to be able to achieve. I think so one has to think of it like that. But one more question that I would ask you, and from the tourism perspective, that when you did all these journeys and you've been doing scuba diving around the world and in India too, you've been cycling, you've been a marathoner. Now, two questions rather. One, when you actually went for the Everest, you were not exactly in your 20s, you were 40 plus. And did that daunt you, the fact that you were not a strapping youngster, so to say? And the other thing around tourism, that how do you think we could do better in terms of facilitating, making these places more tourist friendly? What would be your message to us on that, sir? Okay, first thing, I had wanted to go to the Everest for a long time. And I firmly believe, difficult to prove it, that it came into my life because I wanted it so much. And my family, in particular my wife, who's a serving IAS officer, same batch, was really supportive because she had wanted that desire in my heart and mind for the last 20 years. And when it came into my life, there was no doubt in my mind that if I don't take this attempt, I'm going to regret it. Whatever age it might be, people have climbed at 60, 70, so 40 is nothing. So there was no doubt that I will give it my best shot. Secondly, to make these places more friendly, I think that we need to have lot of clarity on how people can reach the place. What are the precautions? What are the preparations required for it? So if somebody has to, for example, cycle from Manali to Leh to Khadungla, then that person would like to know minute details about how long does it take to prepare. What are the fitness benchmarks that they should achieve in cycling? What are the things that they must have? What is the kind of equipment? Where can they hire it from? How much does it cost? Where is the first stop? What is an emergency help number? So that you know it's a complete package and all aspects are being taken care of as far as possible. Then people would be encouraged to attempt it. So they don't have to find and, at random, find the information and somehow try to put it together. We should do it for them. Right, makes sense. So I'll just take one last question and then pass on to Dr. Pankaj. Palak Vyas is asking, how many mountaineering training camps have you done and till what level? I could just do one. I did the basic mountaineering course and then I didn't have time for the advanced. But they made us do mountaineering camps for our selection because 45 people volunteered, only 15 had to be selected. So I attended those camps and they could see me perform well. And I made it to the team. So I am an undeserved recipient of this blessing.
I just made it. Fantastic, sir. And so yes, so the best officer trainee, and then the first civil servant to actually climb the Mount Everest, and so many other things. But we'll come back to you, sir, in a bit. And I'm going to ask Dr. Pankaj Mittal to take it forward. If you have any questions for Mr. Karwal, or would you like to introduce the next special guest for the day, Dr. Pankaj? Thank you, Rupinderji. It was really nice to see the beautiful slides which he had displayed. I mean, I think it's very difficult to believe India is so beautiful and still people are going to foreign countries. So I think we should stay back and visit all our adventurous places, the mountains, the sea, everything. I mean, it's so beautiful. Thanks for bringing it to our notice, Karwalji, and thanks for sharing all those slides with us. So now let us move on to Santosh Yadav ji. Santosh Yadav ji, आपको लग नहीं रहा होगा कि उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। वो इतना ये ट्रेडिशनल अटायर में बिल्कुल सर पे पल्लू करके हमारे सामने बैठी हैं। संतोष यादव जी, she was born in Haryana and while studying she found her ways to the Himalayas through the Aravalli. So in 1990 she achieved the distinction of being the first woman in the world to scale the highest peak in eastern Karakoram from the technically difficult west face route. She added another feather in her cap when she led an expedition to the Andes, the longest mountain range in the world. She and her team hoisted the Indian tricolor atop Mount Aconcagua in Argentina to commemorate 50 years of India's independence. She has been awarded Mahila Shiromani Award, Rajasthan State Maharana Pratap Award, Indian Mountaineering Foundation's Gold Medal for Distinguished Mountaineering, and the government of Haryana has even named a very busy road after her name to honor her rare achievement as Shrimati Santosh Yadav Marg. Her rare achievement of becoming the first and only woman in the world to scale Mount Everest twice has been recorded in the Guinness Book of World Records in 1994. And in 2000, just because of her achievements, His Excellency, the President of India, honored her with the award of Padma Shri for her excellence in the field of mountaineering. We are very lucky to have you with us, Santosh Yadav ji. Thanks for coming. Thanks for agreeing to our and accepting our invitation. Over to you. आपको अनम्यूट करना है संतोष जी, आप अनम्यूट कर लीजिए. Yes. जी पंकज जी नमस्कार, और आप सभी को जितने भी पैनलिस्ट हैं मेरा सबको नमस्कार, और स्पेशली जो लिंक किए हैं उनको भी मेरा नमस्कार. आज इस प्रोग्राम में मेरे जुड़ने के लिए मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, विशेषकर क्योंकि इतने अच्छे अच्छे पैनलिस्ट हैं और साथ में हमारे भारत की बात हो रही है. भारत बहुत ही एक ऐसा देश है जिसमें कि सर्वशक्तिमान हमारी सारी शक्तियां जुड़ी हुई हैं यहाँ पर. खैर, मेरी हिमालय की यात्रा जो है एक जिज्ञासु के रूप में हुई. जैसे कि अतुल जी ने कहा कि वह एक चाहते थे एवरेस्ट क्लाइम करना. मुझे तो एवरेस्ट के बारे में पता ही नहीं था. इनफैक्ट जब मैंने शुरुआत की, ट्रेनिंग की, तो मुझे एवरेस्ट के विषय में पता ही नहीं था. मैं तो एक हिमालय देखना चाहती थी, क्योंकि हरियाणा की लड़की जहाँ जिसने कभी बर्फ और पहाड़ देखे नहीं थे, तो मेरे लिए एक विषय था कि कैसे बर्फ लगते होंगे, कैसे पहाड़ हो. हिमालय इस दुनिया का हिस्सा नहीं है. जब मैं गांव में छोटी सी थी, मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ, तो मैंने वहां देखती थी एक पिक्चर होती थी जहाँ पे पार्वती और शिव जी और उसके पीछे में पहाड़ होते थे. तो मैं सोचती थी शायद ये इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, वो स्वर्ग है, कहीं पे कोई और हिस्सा है. और खैर, मैंने एक दिन आया कि मैं उत्तरकाशी पहुंची. वहां पर मुझे बिल्कुल नाजुक सी है, ये तो छोटी सी है और ये कहाँ क्लाइम करेगी, 2-3 दिन में वापस चली जाएगी. एंड आई फाउंड मेडिकली अनफिट ऑल्सो. आई वॉज अंडरवेट, माई लंग्स वर वेरी स्मॉल एक्चुअली. एवरीबडी स्टार्ट टॉकिंग कि तेरे लंग्स इतने छोटे, कहाँ कैसे क्या करेगी. खैर, मैंने कहा संतोष बड़ी मुश्किल से फीस जमा कराइए. दो आई एम फ्रॉम वेरी वेल टू डू फैमिली, बट एक विद्यार्थी तो बहुत ही हमेशा उसके पास पैसे की कमी होती है. और मैंने अपने माता पिता को नहीं बताया था कि मुझे ये माउंटेनिंग करना है. तो मुझे छोटा छोटा पैसा जोड़ करके आज जितने भी मेरे विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगी,
मन में अगर आपने कोई चीज का संकल्प लिया है तो उसका विकल्प नहीं होना चाहिए, और वही मेरे साथ हुआ। एक 1986 में 1000 रुपया जोड़ना वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। पेंटिंग करती थी, पेंटिंग मेरी हॉबी रही है। पेंटिंग को मैंने कम किया और स्पेशली स्केचिंग करना शुरू किया। मैंने अपनी पुस्तक का पैसा सारा का सारा खर्च किया, इसी के लिए जमा किया, और मैंने लाइब्रेरी जाकर के नोट्स बनाती थी सो दैट मुझे किताबें नहीं खरीदनी पड़े। उसी तरीके से फिर मैंने इवन ये आजकल मैंने एक चीज शेयर करना शुरू किया है, जबकि मैं बहुत कम इस बात को शेयर करती थी, लेकिन आज जरूरत है इस चीज की शेयर करने की, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। वो ये है कि बल्कि मैंने तो आवश्यकता को त्यागा। एक 16-17 साल की बच्ची के लिए फूड, एवरीडे फूड लेना आवश्यकता होती है, लेकिन क्योंकि मुझे पैसा बचाना था, मुझे आज भी याद है जब मैं हॉस्टल में रहती थी 180 रुपया मेरी फीस थी मेस की, और मैं एक दिन भोजन लेती थी और एक दिन उपवास करती थी। जनरली ऐसा हो जाता था मेरे साथ में, सो दैट कि मैं वो पैसा बचा सकूं और मैं माउंटेनियरिंग के लिए जा सकूं। और भी कई ऐसी थी, मैं जहां से मुझे पैसा मिलता था तो मैं उसको रख लेती थी, और मैं ये हिमालय को देखना चाहती थी। खैर वहां गई तो हमें जैसा कि मैंने बताया कि लोगों ने कहा कि कैसे क्लाइंब करेगी, किस तरीके से ये करेगी। मैंने संतोष चुपचाप बैठो, तुमने हिमालय देख लिए, क्योंकि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है उत्तरकाशी, वो चारों तरफ हिमालय से घिरा हुआ है। तो मेरी तो इच्छा पूरी हो गई है, अब जो इंस्ट्रक्टर कहे, जो शिक्षक कहे, वो अपने आप चुपचाप करो। तो मैंने मुझे नेक्स्ट डे 20 किलोग्राम मेरे पीठ पे डाल दिया गया और 20 किलोमीटर जाने के लिए कहा गया। मैं वहां पहुंची तो 2 इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने कहा कि कहाँ है बाकी की लड़कियां। मैंने सोचा आई एम द लास्ट वन टू रीच हियर एंड आई फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड, और मैं वहां से भागने लगी शर्मा के कि मैं बहुत पीछे आई हूँ। बाद में मुझे पता चला कि मैं जब वापस गा रही थी तो सभी लड़कियां वहां से आ रही थी। तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, पहाड़ में तो एक ही रास्ता है, एक तरफ नदी है एक तरफ पहाड़ है, ये कैसे हो गया, ये लड़कियां कहाँ से आ गई। तो फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ, एक बीच में मार्केट पड़ता था। लेकिन जब हम लोगों ने इंस्टीट्यूट से स्टार्ट किया, वी वर 64 गर्ल्स, तो सब लोग बहुत स्पीड में जा रही थी और एकदम एक दूसरे को आगे पीछे करने की कोशिश में थी। मुझे उस सब चीजों मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ वो पूरी प्राकृतिक सौंदर्य के अंदर खो गई थी, और जो दिया हुआ टास्क उसको पूरा करने की कोशिश कर रही थी। किसी को पीछे करने की और किसी से आगे जाने की बिल्कुल भी मेरी कोई ना ही मंशा थी। दिए हुए टास्क को पूरा करने की कोशिश में थी। तो मुझे पूरे ट्रेनिंग में एक बात समझ में आई कि हमें कंपटीशन जो लोगों के दिमाग में था वो कहीं ना कहीं उनका रिदम तोड़ रहा था, क्योंकि जो लड़की को मेडिकली अनफिट कर दिया गया वो पहले कैसे पहुंच जा रही है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि मैं कहीं रुकती नहीं थी बीच में, मैं एक रफ्तार में चली होती थी, बहुत स्पीड नहीं करती थी, और कोई मेरे मन में कोई बहुत आगे और बहुत फर्स्ट आने की कोई ख्वाहिश नहीं होती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी ऊर्जा जो थी, एनर्जी जो थी, दैट वाज इंटैक्ट इन फैक्ट। और end of the course my name was considered as a best candidate for the mountaineering। तो वो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग हो गया कि मेरे से भी अच्छी लड़कियां थी, why I've been selected for that। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, that had helped me, मेरे माता पिता का दिया हुआ संस्कार था कि सुबह जल्दी उठते थे वो लोग, 3:30-4 बजे उठ जाते थे और मैं उनके साथ उठ जाती थी। पर जब मैं हॉस्टल गई तो मैंने और इम्प्रूव किया, मैं शार्प 3 o'clock उठ जाती थी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो था वो इकोनॉमिक्स था। एंड द सेम टाइम क्योंकि मैं गांव से पढ़ी थी तो मेरी बहुत सारी जो स्तर था मेरा शिक्षा का वो बहुत अच्छा नहीं था, तो मुझे जाकर के वहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ा। एंड मैं बहुत हिंदी मीडियम से थी, 12वीं कक्षा तक मैंने हिंदी मीडियम किया, तो मुझे इंग्लिश भी इम्प्रूव करनी थी। तो एवरीडे मेरा टास्क होता था कि मुझे कितने वर्ड्स याद करने हैं। तो ऑल दीज थिंग्स रियली हैड हेल्प मी इन माउंटेनियरिंग ऑल्सो, क्योंकि माउंटेनियरिंग में सुबह जल्दी उठना ही बेहतर होता है, और हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा होता है। मुझे याद है कि बेस कैंप में 3 बजे उठ जाती थी,
फ्रेशर्स होकर के मैं किचन में आती तो देखते थे कि कुक भैया पानी चढ़ा करके 100 लोगों की चाय बनानी होती थी, तो वो सो गए हैं तो मैं उठाती थी, भैया पानी बॉयल गया है। तो मुझे लगता है कि ये सब हमारे जो स्टाफ होते थे, हमारे इंस्ट्रक्टर होते वो हमें देख रहे होते थे। एंड आज मुझे समझ में आता है कि सुबह का जल्दी उठना इज सो इम्पोर्टेंट एक्चुअली। हमारे लंग्स बहुत एक्टिव होते हैं उस वक्त 3 to 5, और मुझे लगता है कि मेरे लंग्स बहुत छोटे जरूर थे, लेकिन क्योंकि मेरा सुबह जल्दी उठना, और इंटरेस्टिंगली एक बड़ा कंट्राडिक्ट बात हुई, मुझे आज भी याद है 11 मई 1993 जब मैं दोबारा क्लाइंब कर चुकी थी 10 मई को 1993 में, और मैं एक तूफान में फंस गई थी। वह तूफान एक ऐसा था कि 180 की स्पीड पर किलोमीटर आवर्स आकी गई थी, और लोगों ने जिसने मुझे देखा, बहुत लोगों ने कहा कि ये बच नहीं सकती, कोई भी एक क्लाइंबर है वो उड़ जा चुका है। मुझे बहुत बार उड़ा के फेंका है। मेरा जब 4th फॉल हुआ तो मुझे ये लगा कि अब शायद मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरे हाथ फ्रोज वाइट हो गए थे, नम हो गए थे, और रस्सी को मैं पकड़ नहीं पा रही थी। मैंने साइंस का प्रयोग किया, जैसे ही हवा घूमी और मैंने अपने शरीर को उठा करके बाईं तरफ एक गड्ढा देखा, उसमें फेंका मैंने अपने आप को। कैंप 3 पहुंची, लेकिन कैंप 3 के बाद भी हवा कम नहीं हो रही थी। समहाउ मैं कैंप 2 पहुंची क्रॉल करके। वहां पे जब मैं पहुंची तो दो डॉक्टर थे, अमेरिकन और ब्रिटिश, वो दोनों रिसर्च करने के लिए बेस कैंप में आए हुए थे, और वो उस दिन लकीली कैंप 2 आए। उन्होंने जब मेरे हाथों की कंडीशन देखी तो उन्होंने कहा कि ये हाथ नहीं बच पाएंगे, ये हाथ कट जाएंगे। तो जो डॉक्टर बोल रहे थे तो मैं उनको समझ रही थी, क्योंकि उनसे ज्यादा मैं जानती थी, क्योंकि हर इंसान अपने शरीर का डॉक्टर होता है। क्योंकि वो तो खाली बाहर से सुपरफिशियल वे से देख रहे थे, अंदर से तो मैं फील कर रही हूँ कि वो मेरे हाथ नम हो चुके हैं, कंप्लीटली सेंसेशन है ही नहीं। उसके बावजूद भी मेरे अंदर के मन ने कहा कि नहीं, मेरे हाथ बच जाएंगे। और उसी वक्त मेरे इंस्ट्रक्टर की याद आई। उन्होंने मुझे पूरे स्टूडेंट्स को बताते थे कि जब भी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, द बेस्ट मेडिसिन टू गो डाउन। तो वो लोग मेरी शूज निकाल करके मेरा बिस्तर लगा रहे थे। मैंने कहा नहीं मैं नीचे जाऊंगी। तो लोगों ने कहा कैसे आप नीचे जाएंगी, आपको पता है बेस कैंप से कैंप 2 से बेस कैंप तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 6 आवर्स चाहिए। मेरी कंडीशन जो थी, क्योंकि इतने सारे लेडर्स क्रॉस करने, मुझे मोर देन 100 लेडर्स, और उन लेडर्स को क्रॉस करने के लिए मेरे हाथ तो काम कर नहीं रहे, कोई दूसरा हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि लेडर की चौड़ाई 1 फीट है। उसी वक्त फिर मैंने एल्बो का इस्तेमाल किया, और बड़े रिदम के साथ में मैं क्रॉस करती थी। जहां प्लेन मिलता था वहां मैं लिटरली दौड़ती थी। मुझे बहुत समय लगा और मैं बेस कैंप पहुंची। बेस कैंप में हमारी डॉक्टर रीटा पटेल ने मेरे हाथ देखे और वो रोने लगी। उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ की कंडीशन बहुत खराब है, तुम्हें पता है इस बात का? मैंने कहा मैं जानती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे हाथ ठीक हो जाएंगे, अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू कीजिए। उन्होंने इमीडिएटली बात की हमारे लीडर से। मैं डिप्टी लीडर थी उस एक्सपीडिशन की। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर मंगाया जाए इसके लिए। मैंने इशारा किया कि नहीं, मैं हेलीकॉप्टर से नहीं जाऊंगी, क्योंकि हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाए तो मैं सिर्फ 5-6 घंटा और यहाँ रेस्ट करूंगी और मैं फर्दर नीचे जाऊंगी सो दैट कि मैं अपना ट्रीटमेंट ले सकूं, और नीचे जाने से मेरा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। फाइनली मैं सवेरे 2 बजे के करीब रात के मैंने प्लान किया कि मैं निकलूंगी, और मैं वहां से निकली। 4 दिन का रास्ता लुकला पहुंचने के लिए लगता है। वहां से मैंने 23 घंटा लगातार मैं चलती रही पैदल ऑन फुट, और ये मेरा डिसीजन बहुत सही रहा कि मुझे लगभग 9-10 बजे करीब जब मैं ट्री लाइन में पहुंची, मेरा ब्लड सर्कुलेशन के कारण मेरे हाथ में इतना जबरदस्त पेन होना शुरू हुआ कि मैं उसको बेयर नहीं कर पा रही थी। इतना पेन था कि मुझे आज भी वो याद आता है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे वो खुशी के आंसू आने लगे मुझे कि मेरा पेन हो रहा है, मींस मेरे हाथ बच जाएंगे, क्योंकि उस ब्लड सर्कुलेशन ने मेरे टिश्यूज को रिवाइव करना शुरू किया। खैर, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज
कि कैसे मुझे जब मैं बिल्कुल लुकला पहुंचने वाली थी तो कैसे गांव के जो फेस्टिवल होते हैं उनमें से 3 लेडीज आ रही थी, उसमें एक शकपा शेरपा थी, उसने मुझे अपने घर लेके गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि तपाईले संतोष यादव हो, इंडियन मान्छे हो? हाँ हजुर। तपाईले संतोष यादव हो? हजुर। ओ तपाईले टॉप पुग्यो, because by the time it came the news and they were so happy, they start celebrating at that time. It was around 10:30 in the night and they started मेरे एकदम चारों तरफ घूमने लगी और मेरा रुकसेक लेने लगी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने उनको कहा कि मेरे हाथ में दर्द है, तो उन्होंने कहा तपाईले के भयो? ह्यू लाग्यो? ह्यू लाग्यो मीन्स आपके फ्रोज बाइट हो गया क्या? हाँ, ऐसे यस। एंड देन कैसे वो मुझे अपने घर पे ले गई, किस तरीके से उन्होंने मेरी सेवा की, ये बहुत बहुत डिफरेंट है। क्योंकि नेपाल बहुत ही कमर्शलाइज हो गया है, लेकिन वो अपने घर पे हर घर में लॉज बने हुए हैं और एक तातो पानी मांगेंगे तो 10 रुपया 20 रुपया, उन दिनों की बात कह रही हूँ मैं। और उस लेडी ने क्या किया कि उनके हस्बैंड जगे हुए थे, बच्चे जगे हुए थे, उन्होंने मेरे पैरों को पानी में रखा, बहुत स्वेलिंग हो चुकी थी। एंड देन मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं स्नान करूंगी, तो उन्होंने मुझे नहलाया भी और मेरे मुंह पे अपने आप क्रीम लगा दी, जैसे अपने बच्चे को वो कर रही है। तो ये एक ऐसा सीन था। खैर मैं काठमांडू पहुंची, किसी भी तरीके से काठमांडू पहुंच करके वहाँ हमारे हिज एक्सेलेंसी, हमारे जो एम्बेसडर थे, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल किया, विमल प्रसाद सर, और पूरा ट्रीटमेंट लिया मुझे। फिर मैं 2 साल के बाद जब मैं जापान गई, हमारे पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड की माउंटेनियर्स इकट्ठे हुए, वहाँ कोई हमारा सेमिनार हो रहा था, वहाँ वो डॉक्टर पहुंचे, उन्होंने मेरे हाथ देख के कहा कि संतोष, इट्स द सेम हैंड, इट्स अ मिरेकल, वी कांट बिलीव दैट योर हैंड्स आर टोटली रिकवर्ड, इज हाउ इट्स पॉसिबल। देन वो पूरा मशीन उठा के लेके आ गई, तो रिसर्च का विषय है। और उन्होंने सबसे पहले मुझे, जो आज हम लोग ऑक्सीमीटर की बात करते हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ऑक्सीमीटर चेक किया कि मेरा ऑक्सीजन लेवल क्या है। एंड दे फाउंड ऑक्सीजन सैचुरेशन इज अमंग ऑल द माउंटेनियर्स, वर्ल्ड माउंटेनियर्स, द बेस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ये उनको बात पता नहीं थी कि मेरे लंग्स छोटे हैं और मुझे डॉक्टर ने ऑलरेडी अनफिट किया हुआ, वो बात उनको पता नहीं थी, ये बात मुझे पता थी। तो मैं मन ही मन एनालाइज कर रही थी कि इधर ये कह रहा है मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत अच्छा है, उधर डॉक्टर कहते हैं मेरे लंग्स बहुत छोटे, तो मैं ऑक्सीजन, मेरा सैचुरेशन बहुत कम होगा, मैं सांस कैसे ले पाऊंगी। तो मैं एक कंक्लूजन पे पहुंची, एनालाइज जब किया, ओके, मेरा सुबह जल्दी का उठना वो मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाया हुआ था। नंबर 2, एक माउंटेनियर को, एक इंसान को, उसका जो संतुलित व्यवहार जो होता है, वो एक स्टेबलाइजर होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए और ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए। इनफैक्ट ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत शांत और शांत स्वभाव की, मुझे किसी भी चीज के लिए कोई लालच नहीं और कोई इस तरीके का कोई वो नहीं था, मैं बहुत शांत रहती थी। तो मुझे लगता है कि वही मेरा सबसे बड़ा मजबूत टूल रहा। और मैं कहूँगी कि आज मेरे 10 उंगलियों के साथ में हूँ। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं और मेरा बहुत मानना है कि पंकज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि होलिस्टिक अप्रोच, ये हमारा बहुत हर युग की आवश्यकता है इनफैक्ट। और इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसका उद्देश्य, जो मुझे समझ में आया, अभी तक अनुभव किया, सबसे पहला उसका उद्देश्य ही डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या व्हाटएवर यू नो, वो नहीं हो करके, बल्कि उसको स्वस्थ रहना होना चाहिए। हर इंसान का, हर मानव का सबसे पहला उद्देश्य स्वस्थ रहना है। उसका स्वभाव जो है वो है खोज करना। वो फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ भी बने, तो वो अगर स्वस्थ है तो वो स्वस्थ खोज करेगा। यही हमारी सबसे पहली
होलिस्टिक अप्रोच और भारतीय संस्कृति और किसी भी देश की संस्कृति का सबसे पहला नियम यही है, आज ही नहीं किसी भी युग की आवश्यकता है ये। और हिमालय से बढ़िया हमारा जीवन, हमारी संस्कृति की जो सीख है, आज हम बड़ी बड़ी योग की बात करते हैं। मैं मसूरी में रहती हूँ। अतुल सर, आपके लवासना के पीछे ही मेरा घर है, वहीं पे मैं रहती हूँ। और यहाँ मैं रोजाना सवेरे 3 किलोमीटर पैदल मंदिर जाती हूँ और वहां से 3 किलोमीटर पैदल आती हूँ, 2-4 किलोमीटर और मेरा हो जाता है। तो जब मैं चढ़ाई कर रही होती तो पूरा कपाल भारती हो रहा होता है, प्राणायाम वगैरह हो रहा होता है। तो हमारा जो योग है वो एक्चुअली हिमालय से ही शुरू हुआ। और सबसे अच्छी बात है, कल भी मैं अपनी बेटी को कह रही थी, हम उनके स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में मैं बता रही थी, बेटे ध्यान से चलो, देखो यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ है और आपका पैर थोड़ा मुड़ सकता है और साथ में थोड़ा गंदा भी है, तो यही ध्यान की अवस्था है। तो मैंने बेटी को कहा कि बेटा, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, आप दोनों बहन भाई हिमालय की यात्रा साल में 2 बार जरूर करें, क्योंकि और स्पेशली ट्रैकिंग, वहां के अंदर की जो रास्ते हैं, इतने ऊबड़ खाबड़, इतने दुर्गम रास्ते हैं, उस दुर्गम रास्तों को पार करने के लिए हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। और वही ध्यान की अवस्था होती है भोजन पकाना। ये भी मेरी बहुत बड़ी मेरा शौक है। मैं भोजन बहुत अच्छे से, बहुत बड़ा मजा आता है। और भोजन पकाना भी एक बहुत बड़ी ये कला है। इनफैक्ट ये अंदर की इंसानियत की बहुत खूबसूरती को दर्शाती है और साथ में हमारी ध्यान की अवस्था को बढ़ाती है। इनफैक्ट यदि हमने ठीक से नमक नहीं डाला या ठीक से कोई मसाला नहीं डाला या कौन सी क्या चीज कब डालनी है, तो वो एक बड़ी अच्छी ध्यान की अवस्था को, आज बड़े बड़े ध्यान लगाने के लिए हम लोग ध्यान में बैठ जाते हैं। तो काम करना ही, एंड स्पेशली टेक्निकल वर्क्स जितने भी हम करते हैं, तो उसमें बड़ी ध्यान की आवश्यकता होती है। तो हमें सबको ये जानना होगा कि ध्यान क्या है। विशेषकर मैं, आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह करूंगी कि हिमालय में मेरे ख्याल से जरूर आना चाहिए। पंकज मैम, प्लीज, आप एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, मेरा आग्रह है कि कम से कम हमारे जो पलायन है वो रुक जाएगा। हिमालय में जो पलायन हो रहा है, वहां पे हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कम से कम जो व्यवस्थित, जो वहां पे बने हुए घर है, वहीं पर रहे बच्चे। 6 महीने की एजुकेशन, कम से कम नहीं तो 3 महीने की एजुकेशन हमें हिमालय में बच्चों को देनी चाहिए। उससे ऑटोमेटिकली उनके पास होलिस्टिक अप्रोच आ जाएगा। और उस नेचर को कैसे महसूस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी की जो एजुकेशन है, हमारे जो कमरे के अंदर कर रहे हैं वो करी क्लासरूम में, लेकिन जब तक वो नेचर के पास नहीं जाएंगे, वो उस हिमालय की विशालता को जब देखेंगे, उस हिमालय हृदय, उनका मस्तिष्क और हृदय कितना विशाल होगा। और वहां तो शुद्धता, बहुत ही अतुल सर ने कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स शेयर की हैं। तो इस तरीके से मैं चाहूंगी कि एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से मैंने आवश्यकता को भी त्याग करके पैसा बचाया, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी अनावश्यकता को तो कम से कम हटा ही सकते हैं। जितनी भी आपकी अनावश्यकता है उनको हटा करके आप पैसा जोड़िए। अब किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इवन मैं कहती हूँ कि पूरे भारत को मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर हम संस्कृति की पालना करते हैं तो हम सबसे पहले हमारी स्वास्थ्य को ध्यान देते हैं, हमारी शिक्षा अच्छी होती, संस्कार के साथ में होती है, फिर हम पर्यावरण को सुरक्षित कर देते हैं, हमारी इकोनॉमी को सुरक्षित कर देते हैं। मैंने एक शेयर करना चाहूंगी, मैंने एक अभियान, बच्चे मुझसे बात करते हैं, मुझे लगता है एक बार और हम मिलेंगे जब आपकी बहुत लंबी बातें। हाँ, जरूर 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 जरूर। तो बच्चों को यही आग्रह है कि अपनी अनावश्यकता को त्याग करके आवश्यकता में आए और पैसा बचा करके भारत को मजबूत करें, अपनी संस्कृति को मजबूत करें और पूरे भारत को देखें। जी 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 जी। और हमें, मैं समझ सकती हूँ कि आपने बोला कि छोटी सी लड़की, कमजोर सी लड़की, हल्की सी लड़की, छोटे छोटे लंग्स वाली लड़की, उसने अगर एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया, तो मुझे लगता है कि अगर मन में डिटर्मिनेशन हो, विल पावर स्ट्रांग हो,
तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। तो आप तो हमारे लिए एक विमेन एम्पावरमेंट का जीता जाता सिंबल है। और आज जो भी बच्चे आपको सुन रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि यस, इफ वी डिसाइड दैट वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। तो सिर्फ मन में धारणा है कि हाँ हम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और ये आपने बिल्कुल अपनी बातों से स्पष्ट कर दिया कि हाँ वो किया जा सकता है। So thank you very much. Thanks for joining us today and thanks for narrating your experience. और आप जब बोल रही थी ना तो दिल से बोल रही थी, बिल्कुल दिल की बात निकल के आ रही थी। Thank you very much. Thanks for being with us today. And I get over to Rupinder ji for the next speaker. Thank you. And in fact, I think हम greedy है ना संतोष जी, इसलिए हम आप तीनों को एक साथ चाहते थे, पर आप दोनों को अभी तक जितना सुना है ये लग रहा है कि हमें अलग अलग एक दोबारा सेशन आप सबके साथ करना पड़ेगा। तो ये एक शुरुआत है, एक प्रीव्यू है आप सबके साथ, और हम दोबारा आपके साथ एक लंबे सेशन के लिए जरूर जुड़ना चाहेंगे। तो और इनको देख के कोई कहेगा नहीं कि ये माउंटेनियर है, मतलब जिस तरह से सिंपल ट्रेडिशनल स्टाइल में ड्रेस्ड है, ऐसा लगता नहीं कि ये माउंटेनियर है। सो थैंक यू। के लिए ये भी एक बहुत, इनफैक्ट आपकी जब तस्वीर आई हमारे पास तो मेरी टीम ने ये पूछा कि मैम कौन सी तस्वीर डालें, यू नो शी इज अ माउंटेनियर, हम सेशन इस पे कर रहे हैं। तो ऐसे इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग पोजीशनिंग नहीं हो सकती कि कोई सोच ही नहीं सकता। इट इज सो एंटीथेटिकल टू द फोटोग्राफ कोई आप, और इसी वजह से ये एक प्रेरणा का बहुत बड़ा साधन है सबके लिए। और हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ ये पढ़ के कि बहुत सारी लड़कियां ये सवाल पूछ रही हैं। तो जैसे पंकज ने कहा कि ये महिलाओं के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है कि आप चढ़ी और आप 2 बार चढ़ चुकी हैं। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। एज आई सेड, इनक्रेडिबल इंडिया नहीं आज हम सिर्फ दिखा रहे, हम इनक्रेडिबल इंडियंस दिखा रहे हैं आज। So thank you so much, आप हमारे साथ जुड़ी। And now we move to our third and can I say the youngest panelist now with us? Yes. And so Ravinder, welcome amidst us in Incredible India. In fact, Ravinder and I had a chance to meet when I went for my election duty to Sikkim in 2014, and that's where I discovered that this young boy from Bihar who had no background in any physical fitness, no nothing, came into Merchant Navy and then has come into the Indian Civil Services. He's a 2011 batch IAS officer, now in the cadre in Uttar Pradesh. But how he came into thinking about mountaineering, संजोग की बातें होती हैं शायद कुछ, but phenomenal achievements. And Ravinder, तुम कितनी बार चढ़े हो एवरेस्ट? मैम 3 अटेम्प्ट, 2 सक्सेसफुल और 2000 बताना चाहती थी कि so viewers, it's not just 1 time, not just 2 times, but 3 times. So it's been an amazing journey, and first time how he went without telling people at home was also an interesting story. I hope he's going to tell that to all our young people that ऐसा उन्होंने क्यों किया. Was it, I will ask you that question later, was it unethical on your part to not tell your parents? I'm a parent now, so I'm wondering that if my child did that, what would it mean? But anyways, but taking the session forward, Ravinder, your second expedition, the first one was 2013, second was in 2015, 2019, I think that's when you went with Atul sir, if I'm not mistaken. And what all did you encounter? How was your journey? And how you have actually come to use something which was already a great achievement, but using that to create many more messages. And Santosh ji ne already is baat ke bare mein zikr kiya on the need to do away with unimportant things. And in this century, particularly when the globe is confronted with climate change, with the need to look for sustainable practices, I think बहुत important ये messages हैं. You have been working Shikhar Se Pukar, you've done a coffee table book and so much else. So Ravinder, welcome from your very busy schedules. All of you are busy in your own right, and you've taken out time on Friday from being a district magistrate at Bulandshahr. And how are you doing everything? How did you do everything till now? And what are future plans? Let's hear from you. Welcome, Ravinder. Thank you very much, ma'am, and thank you very much for lovely introduction. I'll be uploading and then I'll start.
renowned Everest climber Atul Karwal sir, very famous Santosh Yadav madam. Here we have Dr. Pankaj Mittal, Secretary General AIO, Dr. Baljit sir, and my dear friends who are available online. You have seen a wonderful presentation by Atul Karwal sir, who basically focused on the south side of Everest. And then you heard very motivational life story of Santosh Yadav madam. In fact, I was recalling my Everest journey when she was detailing all whatever happened with her. I'll be focusing on Everest north side, and then you may be recalling 2015 Nepal earthquake and avalanche. I was there at the base camp. I faced that, so I'll be showing some of the short video of the 2015 avalanche, and then I'll come down to Indian trekking spots, some of the fascinating trekking spots I have experienced, and then I'll also be sharing with you scuba diving, bungee jumping, paragliding, and then at last I'll be sharing with you how you can use it in your life. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले एवरेस्ट से. दिस इज मैप ऑफ Tibet and Nepal. Everest is situated on the international boundary line of Nepal and Tibet, and that is why it is climbed from both sides, Nepal as well as Tibet, and I had privilege to climb it from both sides. In 2013, ma'am, from Nepal side, and again in 2019 from Tibet side. तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें दोनों तरफ का रूट दिखेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. आपने जो वीडियो देखा, बहुत सारे लोग एवरेस्ट क्लाइंबिंग की प्लानिंग करते हैं. मैं आपको एक दो ब्रीफ डिटेल्स शेयर करूंगा. एवरेस्ट को क्लाइंबिंग में लगभग 1 साल प्रिपरेशन में लगेंगे. फिर जब आप एक्चुअल एक्सपीडिशन शुरू करेंगे तो लगभग 2 महीने लगेंगे. और विद इन एक्सपीडिशन ऑल्सो कई बार ऊपर जाना पड़ता है, नीचे आना पड़ता है. अतुल करवाल सर ने आपको बताया जो फाइनल क्लाइंब होता है वो 7 days to 1 week लगेगा. तो चलिए हम आपको नेपाल की तरफ से ले चलते हैं. दिस इज मैप शोइंग ट्रेकिंग रूट्स ऑफ नेपाल स्टार्टिंग फ्रॉम काठमांडू. हम लोग फ्लाइट से लुकला आते हैं और वहां से 9 to 10 days का ट्रैकिंग है. फिर हम एवरेस्ट बेस कैंप पर आते हैं. जब मैं नेपाल के ट्रैकिंग रूट्स की बात करता हूँ तो जस्ट बिकॉज आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड सम ऑफ द फैसिनेटिंग ट्रैकिंग स्पॉट्स ऑफ इंडिया, तो हमें जो लगता है कि वहाँ बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और ट्रैकिंग ओनली अप टू बेस कैंप. इंडिया में भी बहुत सारे हैं, मैं आपको बाद में डिटेल्स में शेयर करूंगा. अभी चूंकि अतुल करवाल सर ने आपके साथ ऑलरेडी साउथ साइड का बहुत डिटेल में बताया है, तो मैं बस इसके फोटोग्राफ्स को फ्लिप थ्रू करते हुए आपको लास्ट वीडियो पे ले जाऊंगा, वीडियो ऑफ द पिक. ये ऑलरेडी अतुल करवाल सर आपको दिखा चुके हैं. तो चलिए एक एक कैंप को देखते हैं. कैंप के फोटोग्राफ्स के साथ हाइट लिखी हुई है. कैंप 1, कैंप 2. ये कैंप 2 से लोत्से फेस है, बहुत ही डिफिकल्ट है, हार्ड आइस है. ये कैंप 3 है. अगेन कैंप 3 टू कैंप 4. ये कैंप 4 है.
कैंप 4 के बाद हम लोग शाम में चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, फिर सुबह में ऊपर पहुंचते हैं। तो हम लोग ये मॉर्निंग का ये वीडियो देखते हैं। Proud to be here representing my country and my service fraternity. ये मेरी 2013 की वीडियो थी जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि आई फील प्राउड टू बी हियर रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री एंड सर्विस फ्रेटर्निटी। जब आप बहुत मेहनत के बाद टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आते हैं तो खुशियां तो होती ही हैं, ये मतलब नेचुरल है। परंतु दो टाइप के रिएक्शन मैंने जो फील किया, पहला तो ये है कि आपको बहुत खुशी होती है, लेकिन आपको लगता है कि आप ऐसे जगह पे पहुंच गए हैं कि कहीं मौसम खराब हुआ तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है, तो यू वांट टू गेट डाउन एज सून एज पॉसिबल। दूसरा ऐसा लगता है कि आपको वहां से सारी दुनिया नीचे दिखेगी। जब आप सामने देखोगे आसपास तो सिर्फ बादल और फिर माउंटेन पिक्स दिखेंगे, तो धरती एकदम यूनिफॉर्म लगती है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे दिल में ख्याल आया कि कहाँ से नेपाल खत्म होगा और इंडिया शुरू होगी, बट वहां पे इंटरनेशनल बाउंड्री है नहीं, दीज आर ऑल ह्यूमन मेड। तो नेचर डज नॉट मेक डिफरेंस। ये जो हमारे जो भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं वो ह्यूमन क्रिएटेड हैं। 2013 जर्नी हमारा बहुत ही सेफ और सक्सेसफुल रहा था, हालांकि उसके बारे में काफी स्ट्रगल थे, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। 2013 जर्नी के बाद मैं आया और सिक्किम में एसडीएम नामची फिर एसडीएम सोरेंग के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में बिजी हो गया। फिर 2014 में हमें एवरेस्ट का फिर से याद आया जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया। तो मेरे मन में ख्याल आया कि ये तो बहुत ही मतलब अच्छी बात है, विशेष करके जो इंडियंस को ओपन डेफिकेशन के कारण हेल्थ हजार्ड होते हैं उनको इम्प्रूव करने में एक रामबाण है। तो आई थॉट कि मुझे भी इस बैनर को लेके एवरेस्ट जाना चाहिए और वहां से टॉप ऑफ द वर्ल्ड से इंडियन से अपील करना चाहिए कि आप ओपन डेफिकेशन बंद करो और शौचालय का यूज करो। तो हम लोगों के रिक्वेस्ट पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका फ्लैग ऑफ किया और हम लोग 5 सिविल सर्वेंट बड़े बैंड वेगन के साथ वहां गए थे, नेपाल गए थे। परंतु आप लोगों को याद होगा कि 2015 में जो बड़ा नेपाल अर्थक्वेक आया था जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए और मेनी मोर इंजर्ड हो गए। हम लोग भी एवरेस्ट बेस कैंप पर थे, वी फेस्ड दैट अर्थक्वेक एंड एवलांच, but by the grace of God I was safe. Many people died within few minutes, around 18 to 20 people died. When we came out we saw that many people are injured, they are even shouting for help. There was so much of chaos that people were running out of base camp to save their life because एक earthquake के झटके के बाद छोटे छोटे और भी झटके आते थे। I thought कि सब लोग अपना जान बचा रहे हैं, आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड कि हमें कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ा और चांस ले लो, कुछ लोगों का जीवन बचा दो। तो आई अलोंग विथ वन ऑफ माय कंपेनियन काजी शेरपा फ्रॉम सिक्किम, वी रेस्क्यूड 2 people to the tent hospital
और उसके 2-3 घंटे बाद जब अंधेरा होने लगा देन वी मूव्ड आउट ऑफ बेस कैंप। तो ये मैं आपसे वो जो थ्रिलिंग वीडियो है अवलांच का वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये रेस्क्यू करते हुए मैं आपसे साझा करूंगा कि जब लिटरली एवलांच आ रहा था और मैं देख रहा हूं कि विद इन फ्यू सेकेंड हम तक पहुंच जाएगा, तो मुझे रिकॉल हुआ कि इज दिस द वे पीपल डाई इन एक्सीडेंट, क्या मेरा भी खात्मा होने वाला है? बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवलांच चला गया 2-3 मिनट में और हम लोग बचे रहे। और उसी हिम्मत ने रेस्क्यू ऑपरेशन का हिम्मत दिया, जिसके लिए HRA हिमालयन रेस्क्यू एसोसिएशन में एक सर्टिफिकेट भेज के अप्रिशिएट भी किया था। इस तरीके से चूंकि 2015 एवरेस्ट के दौरान एवलांच के कारण सारे रूट ध्वस्त हो गए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने ऑफिशियली सारे एक्सपीडिशन कैंसिल कर दिए और हम लोगों को लौटना पड़ा। इसके बाद मैं फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में बिजी हो गया। मुझे लगा कि ये भी पब्लिक सर्विस है, यहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 2016, 17 और 18 आई टोटली फोकस्ड ऑन माय जॉब। उस समय वेट भी बढ़ गया था। फिर 2018 आई वाज वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एट PS2 ऑनरेबल मिनिस्टर। वहाँ पे चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन था, तो वाटर के बारे में बातें होती थी, स्पेशली वाटर कंजर्वेशन के बारे में। तो मुझे लगा कि एक और चांस है, डिस्ट्रिक्ट में रहने पे ज़्यादा भागदौड़ रहती है जैसे अभी है, वहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिवली रिलैक्स था। तो मैंने फिर से प्लान बनाया कि 2015 का ड्रीम अधूरा है, स्वच्छ भारत अभियान को टॉप ऑफ द वर्ल्ड में ले जाने का, प्लस वाटर कंजर्वेशन को एजेंडा बना के एक बार फिर से हम जा सकते हैं। तो दैट्स हाउ वी केम अप विद थर्ड अटेम्प्ट टू एवरेस्ट। बट इस बार हम लोगों ने चाइना से किया था, नॉर्थ साइड से। तो ये चाइना से करने के लिए हम लोग वी फ्लाई टू काठमांडू एंड देन फ्लाई टू लासा। लासा इज बर्थ प्लेस ऑफ हिज होलीनेस दलाई लामा। वहां से फिर हम लोग रोड रूट से बेस कैंप तक आते हैं। देखिए, नेपाल और चाइना साइड में ये अंतर है कि नेपाल में 10 दिन का ट्रैकिंग करके हम लोग बेस कैंप पहुंचते हैं, और चाइना ने बेस कैंप तक रोड बना दिया है। राइट अप टू टेंट हम लोग ड्राइव करके आ जाते हैं। उसके कुछ घाटे भी हैं, फायदे भी हैं। रास्ते में हम लोग एक्लिमेटाइजेशन के लिए रुकते हैं, और उसके बाद मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा। वहाँ का बेस कैंप तक गाड़ी से पहुंच गए। उसके बाद 5 और कैंप थे। साउथ और नॉर्थ में ये अंतर है कि साउथ में मोस्टली हमको एवलांच और आइस से का खतरा रहता है। नॉर्थ में हाई स्पीड विंड का एक्सपोजर है और रॉकी फेस है। तो हम लोग जब क्लाइंब करते हैं क्रैम्पून से, तो रॉक पे ग्रिप भी मिलता है, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और इसलिए मुझे लगा कि नॉर्थ साइड ज़्यादा डिफिकल्ट है साउथ की तुलना में। तो मैं आपको एक वीडियो पहले दिखाऊंगा, बेस कैंप कैसा दिखता है, और उसके बाद स्लोली सारे कैंप्स का फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, जिसमें कि एल्टीट्यूड भी लिखा हुआ है। ये बड़ा प्रेजेंटेशन है, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम वी वोंट गो इन डिटेल। और फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अभी, जो कि मैम ने बताया, रुपेंद्र बराड़ मैम ने, शिखर से पुकार नाम से 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। उसका कुछ पार्ट हमने लिया है, बिकॉज माय एम वाज टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन। तो उस पर एक मूवी है, दिखाऊंगा। स्लोली वी विल प्रोसीड। दिस इज बेस कैंप। आप देखिए कि साउथ साइड में ग्लेशियर के ऊपर बेस कैंप रहता है, बट नॉर्थ साइड में कोई ग्लेशियर नहीं है और प्लेन भी है। So it is entirely different experience from south and north. ये एंट्री कैंप है, ये एडवांस बेस कैंप है। आप देख रहे हैं बेस ऑफ माउंटेन में है। ये आप देखिए नॉर्थ पोल है, आप देख रहे हैं इसका लोकेशन। वहाँ का क्लाइंब भी बहुत डिफिकल्ट है और चैलेंजिंग है। हम लोग बेस ऑफ द माउंटेन से वहाँ पहुँचते हैं, और इसके बाद हम लोग फिर वो जो रिज है उससे क्लाइंब करके इस तरफ आते हैं। When I was climbing and descending, wind was so high
कि हमें लगा कि वो जो रिज है बीच में वहां से हमें उड़ा ले जाएगी, बट मैं और शेरपा अपने आप को रोप से बांध के किसी तरह से नीचे आए थे। ये फिर हमारा कैंप 2 है और ये कैंप 3 है। ये 8300 मीटर एल्टीट्यूड पर है। साउथ साइड में जो हाईएस्ट कैंप है वो 7925 मीटर पे है, नॉर्थ साइड में ज्यादा है। अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप देखिए। गंगा जल साथ लेकर एवरेस्ट की चोटी चढ़कर लोगों से जल बचाओ की अपील करना अपने आप में एक अनूठा कदम है, जिसका सपना लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी, जिन्हें दफ्तर में बैठकर कलम चलाने की आदत है, हिमालय की तरफ चल पड़ते हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई में लगभग 2 महीने लग जाते हैं, जो कि उन ऊंचाइयों में अनंत काल जैसे प्रतीत होते हैं। परंतु जिस देश के प्रधानमंत्री ही अपने देश को स्वच्छ एवं गंदगी मुक्त बनाने और हर घर पेयजल पहुंचाने के लिए पिछले कई सालों से दिन रात जुटे हैं, उस देश का नागरिक भला कुछ महीने एवरेस्ट पे तपस्या क्यों नहीं कर सकता? कहते हैं इरादे नेक हों अगर तो मौत से भी नहीं लगता डर। एवरेस्ट की ऊंची और खतरनाक ढलानों पर पता चलता है कि हमारा शरीर कितना क्षणभंगुर है और इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी प्रकृति के सामने हम कुछ भी नहीं। 8000 मीटर के ऊपर डेथ जोन में सालों से पड़े 200 से ज्यादा मृत शरीर और हर वर्ष वहां मरते पर्वतारोही इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आज मैं विश्व के सबसे ऊंचे स्थान माउंट एवरेस्ट पर, जो कि हिमालय का भी सबसे ऊंचा स्थान है और हिमालय भारत के लिए जल का स्रोत है, नदियों का स्रोत है। अतः नदियों के स्रोत के पास आकर मैं भारत के लोगों से अपील करता हूं कि जल बचाओ, सेव वाटर, ताकि अगले जनरेशन को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। अब मैं आपको इंडिया के कुछ टूरिस्ट प्लस ट्रेकिंग स्पॉट्स पे ले जाऊंगा। Few initial years of my service I have spent in Sikkim. During that stay, I used to trek for longer distance. One trek from Gangtok to Mangan, I had covered 56 kilometers in a day, ma'am. And then West Sikkim and East Sikkim, I have covered whole Sikkim, 4 districts, east, west, south, north. I'll be taking you to the tour of West Sikkim. आप देखिए कि इस मैप में देखिए, यू मस्ट बी नोइंग दार्जिलिंग या सिलीगुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल का पार्ट है। वहां से आप रोड ड्राइव करके ये युक्सम आ सकते हैं 1780 मीटर पर। एंड देन यू हैव 5 days ट्रैक यक्सम टू बखीम टू छोका टू जोंगरी एंड HMI बेस कैंप। जो दूसरा है गोयचला का, वो भी बहुत अच्छा ट्रैक है। जस्ट बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस विद दिस वन, तो मैं आपको इसके कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। ये वेस्ट सिक्किम है। इसी तरीके से नॉर्थ सिक्किम में भी एक से एक खूबसूरत प्लेस है। मंगन के पास में जोंगू है, लाचेन है, लाचुंग है, रुडोमार लेक है। वहां आप जाएंगे तो आपको लिटरली लगेगा कि धरती पे ही स्वर्ग है। बहुत ही ब्यूटीफुल अनडिस्टर्ब नेचर है। पानी उतना ही क्लीन है झरने का। आप बारिश के टाइम में जाएंगे तो नेचुरल वाटरफॉल्स ऑन द वे मिलेगा, मतलब बहुत ही खूबसूरत नजारा है। और फिर ईस्ट सिक्किम में नाथुला पास और उसके पास में एक मेमेंचो लेक है। मैं और अतुल करवाल सर 2013 में मेमेंचो लेक गए थे। दैट वाज वंडरफुल टाइम वी हैड फॉर फ्यू आवर्स। तो मैं आपको इसके कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। ये देखिए युक्सम का फोटो है। ये जोंगरी, यहाँ मैं 6 से 7 बार जा चुका हूँ। सराउंडेड बाय रोडोडेंड्रम फॉरेस्ट, बहुत ही खूबसूरत जगह है एट अराउंड 13,000 फीट। और हमारे जो फ्रेंड्स ऑनलाइन जुड़े हैं, मैं उनसे भी अर्ज करूंगा कि आप यहाँ जरूर जाएं। बहुत स्टेमिना की जरूरत नहीं होती है, कॉमन आदमी भी जा सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिस के बाद। और अगर कोई मोटे भी हैं, बल्कि भी हैं, तो वो भी थोड़ा प्रैक्टिस के बाद जा सकते हैं। कैसे मैं बाद में शेयर करूंगा।
ये आफ्टर जोंगरी ये ब्यूटीफुल ट्रैक है और ये हम HMI बेस कैंप आ गए। HMI दार्जिलिंग एज हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, इनके जो पहले फील्ड डायरेक्टर थे वो तेंजिंग नॉर्गे थे, फर्स्ट इंडियन along with Edmund Hillary to have climbed Mount Everest. इसके बाद आप देखिए कुछ सिनेरियो है। आप ये जगह देखिए HMI बेस कैंप के पास, आपको फ्लाइट में तो जरूर क्लाउड नीचे दिखेगा, बट धरती पे बहुत रेयर ऐसे जगह होंगे जहाँ की क्लाउड आपके नीचे दिखेगा। वो दो क्लाइंबर खड़े हैं और वैली में क्लाउड है, बहुत ही खूबसूरत नजारा रहता है। आप देखिए लेक, ऐसा लगता नहीं है कि लेक है, अनपॉल्यूटेड ब्लू वाटर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वेस्ट सिक्किम का। फिर मैं आपको सिक्किम से उत्तराखंड ले चलता हूँ। उत्तराखंड भी फुल ऑफ एडवेंचर है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी है, फुल ऑफ ट्रैकिंग स्पॉट्स है, फुल ऑफ टूरिस्ट स्पॉट है। मैंने मसूरी के अराउंड और इसके बाद आपको उत्तरकाशी के अराउंड रूपकुंड कई सारे ट्रैक किए हैं। ये मैं आपको ले चलूंगा चक्राता में, जो कि मैंने 2019 एवरेस्ट से पहले 2018 में गया था। वहाँ 1 वीक के लिए हमारे एक फ्रेंड पोस्टेड थे, उसके कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा। ये भी लगता है अनटच्ड ब्यूटी है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये आप देखिए कितना सुंदर है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। ये फॉरेस्ट एरिया के अंदर पड़ता है, आपको पास चाहिए उसके लिए। फिर मैं आपको जम्मू कश्मीर ले चलता हूँ, लेह लद्दाख हिमालय में। ये देखिए आप लेह फ्लाइट से पहुंच सकते हैं और वहां से लेह मनाली हाईवे पे एक रूम से नाम का जगह है, अराउंड 2 आवर्स ड्राइव है लेह से। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यू कैन रीच देयर बाय ड्राइविंग। इट इज सिचुएटेड एट 14,000 फीट। दिन में टेम्परेचर में भी प्लस हो, रात में -10 -15 जाता है। बट विशेष बात यह है कि वहाँ लोग अभी रहते हैं। देयर आर पीपल हु आर लिविंग देयर ओनली। इसके आसपास में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए आप रोड से पहुंच सकते हैं और ये गेस्ट हाउस है लॉन्ग साइड रोड। उसके आसपास आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। यू कैन हैव वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, आप स्नो वॉकिंग का भी आनंद ले सकते हैं। आप आसपास बहुत सारे पीक हैं, उस पर क्लाइंब भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए स्नो वॉकिंग है। नाइट कैंपिंग ओवर स्नो, ये बहुत ही मतलब आनंदमयी क्षण था जब हम लोग एक रात यहाँ पे गुजारे थे। बेसिकली ठंड तो रहती ही है, बट जब आप ग्रुप में जाते हैं तो एक अलग आनंद आता है। फिर मैं आपको कुछ और भी एडवेंचर स्पोर्ट्स जो मैंने किया है ले चलता हूँ। अतुल करवल सर ने भी आपको दिखाया स्कूबा डाइविंग के कुछ फोटोग्राफ्स। मुझे चांस मिला लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग एंजॉय करने का, मैं आपको उसका वीडियो दिखाता हूँ। उसमें विशेष बात यह है कि जब आप सिटी के पॉल्यूटेड माहौल में रहते हैं तो आपको लगता है कि कहीं वी शुड गो टू सम अनपॉल्यूटेड एरिया, जहाँ की सिटी के कोलाहल से दूर पीसफुल लाइफ हो। आप देखिए कि इसका पानी कितना अनपॉल्यूटेड और क्रिस्टल क्लियर है। फिर ये पैराग्लाइडिंग है गोवा में, और फिर रिवर राफ्टिंग है ऋषिकेश में। ऋषिकेश का रिवर राफ्टिंग बहुत ही एडवेंचरस होता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। फिर ये बंजी जंपिंग है ऋषिकेश, अनदर थ्रिलिंग वीडियो, बहुत ही थ्रिल भरा कुछ पल था। मैं आपको ये दिखाता हूँ। बंजी जंपिंग करने से पहले हमेशा मन में आता है कि आपके पैर में रस्सी बंधी हुई है, कहीं ये रस्सी खुल गई तो क्या होगा। बट वही है, लाइफ इज कैलकुलेटेड रिस्क।
If you want to enjoy something, you have to take calculated risk. Another ये पैराग्लाइडिंग है, जम्मू में हम लोगों ने किया था. तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ तो all my friends who are connected online, I want to say कि इंडिया full of adventurous places से भरा हुआ है. आप साउथ इंडिया जाओ, नॉर्थ ईस्ट जाओ, नॉर्थ में जाओ, सब जगह एडवेंचर है, सब जगह टूरिस्ट स्पॉट है. आप जाएंगे, आनंद लेंगे. अभी कोविड के ज़माने में तो और भी फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है. मैं पहले ये वीडियो आपको दिखा. अब ये एडवेंचर देखने के बाद जो हमारे दोस्त ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं बचपन से एडवेंचरस हूँगा या कम से कम फिट होऊंगा. जैसा कि अतुल करवाल सर ने अपनी स्ट्रगल बताई, फिर संतोष यादव मैडम ने बताया. मैं भी एक लेमैन था. इनफैक्ट मैं बचपन में बहुत ही वीक था. आई वॉज लीन एंड थिन. आई यूज्ड टू फेल सिक ओपन, वेरी ओपन, और बहुत ही कमज़ोर था. Then I joined a private job after my education. वो शिपिंग में तो और भी बहुत ही मतलब ऑयली फूड और अन्य कारणों से आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाता है. तो आई गेन वेट. आई वाज ऑलमोस्ट 83 to 85 kg. हमारे जो एडवेंचर लाइफ की शुरुआत हुई वो हुई सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद. फर्स्ट टाइम इन 2011 when I joined IAS Training Academy in Mussoorie. That was my first encounter with mountain. उसके पहले न तो मैंने माउंटेन देखा था, दूर से देखना अलग बात है, नज़दीक से न ही कोई ट्रैकिंग की थी. तो दैट वाज स्टार्ट ऑफ माय एडवेंचरस लाइफ. और उसके बाद मैंने आपको बताया 2011 के बाद 13 में एक एवरेस्ट, बीच में भी बहुत सारे पीक किए हैं. तो मैं अपने दोस्तों से ये बताना चाहूँगा जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कि अगर आप भी चाहते हैं तो ऐसी बात नहीं है. इवन इफ यू आर फिजिकली वीक, अगर आप सस्टेन्ड प्लान्ड मैनर में विद पॉजिटिव विजुलाइजेशन कुछ करना चाहते हैं, विद इनर बिलीफ, तो आप कर सकते हैं. मैं तो आई कुड नेवर हैव इमेजिन्ड इन माय चाइल्डहुड कि मैं कभी माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकता हूँ, स्पेशली आफ्टर इनिशियल एजुकेशन. जब आप ऑलमोस्ट अ डिकेड सी पे काम करते हैं, तो सी पे काम करने के बाद मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था माउंटेन में आऊँगा. अब कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि आई विल आल्सो शेयर कि आप कैसे कर सकते हैं. तो एक पॉजिटिव विजुलाइजेशन है जो कि मैंने डॉक्यूमेंट किया है, और उसमें मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा बचपन के. बोलने से में भी उतना बिलीफ नहीं होता है. आप देखिए, ये आई वाज लीन एंड थिन इन चाइल्डहुड. इसके बाद ये शिपिंग टाइम का फोटोग्राफ्स है. फिर जब मैंने लवासना ज्वाइन किया है 2011 में है, और देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन वंस आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. फिर ये देखिए कि 6 महीने बाद कैसा हो गया. और फिर 2013 हुआ, फिर 15 हुआ. 15 के बाद अगेन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब. फिर नेक्स्ट फोटोग्राफ्स में दिखाता हूँ क्या है. ये देखिए लेफ्ट में कि व्हेन आई वाज पोस्टेड इन उत्तर प्रदेश इन डिस्ट्रिक्ट, तो आई वाज ऑलमोस्ट 89 kg. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गया, वहाँ लगा कि नहीं फिर से क्लाइंब करना है. तो फिर मतलब 89 टू ऑलमोस्ट 71, 18 kg लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months. तो ये लगता होगा आजकल के लोग, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मे बी यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, बट वेट लूज करने में सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि वेट लूज करना सब लोग चाहते हैं, फिट सब लोग दिखना चाहते हैं. अब ये कैसे होता है? विद सस्टेन्ड प्लान एफर्ट विद पॉजिटिव विजुलाइजेशन. तो हमने डॉक्यूमेंट किया है. ये 3 हमारी किताबें हैं, एक 2016 की, ये 2, और ये रिसेंट बुक्स आई है 3. तो बेसिकली हमारा ये मानना है, जैसा कि संतोष यादव मैडम ने भी बताया, कि माउंटेनियरिंग और एडवेंचर का और कुछ फायदा हो ना हो, नाम शोहरत अलग बात है, बट आपका जो फिटनेस है, फिटनेस जरूर बन जाता है. आफ्टर ऑल हेल्थ इज वेल्थ. विशेषकर कोविड के ज़माने में आप देख रहे हैं कि बहुत से वेल्दी व्यक्ति सारा वेल्थ यहीं छोड़कर चले गए. तो हेल्थ टेक्स फर्स्ट प्रायोरिटी, स्पेशली नाउ ए डेज. और
ये जो वेबिनार हो रहा है उसके माध्यम से भारत में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का जो टारगेट है, एक तो यह है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना, दूसरा जो आप लोगों के लिए गेम है वो है फिटनेस, अपना फिटनेस बढ़ाना। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं सिटी के कोलाहल से दूर अनपोल्यूटेड माहौल में, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। और इसलिए एक बहुत ही फेमस माउंटेनियर ने, लेजेंडरी माउंटेनियर थे जॉर्ज मैलोरी, उन्होंने इसके बारे में कहा था। मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाता हूँ करने से पहले कि देखिए, उन्होंने कहा था कि व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस एडवेंचर इज शेयर जॉय, एंड जॉय इज आफ्टर ऑल द एंड ऑफ लाइफ। मतलब अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज हैप्पी लाइफ। We don't live to eat and make money. We eat and make money to be able to enjoy life. That is what life means and what life is for. So thank you very much, all my friends who are online. आप भी बाहर घूमिए, हेल्थ अच्छा कीजिए और वेल्थ पे कम फोकस करके हेल्थ पे ज्यादा फोकस कीजिए, स्पेशली कोविड के जमाने में। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Ravinder. I think that was a beautiful presentation from you, and you touched so many aspects. In fact, बहुत अच्छी जो बात, बहुत सारी बातें नहीं उभर के आई, बट एक दो जो मैं अहम बातों को मैंने पिक किया, that boundaries are only human. I think ये कितनी सुंदर बात है कि it is all in our mind when we are thinking political boundaries and all kinds of boundaries. Nature ने तो कोई boundary बनाई ही नहीं. And water conservation का तुम्हारा मैसेज again very contemporary, because कई बार ये बात कही गई है कि अगर दुनिया में कोई नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी तो वो पानी को लेकर होगी. So that's a very important message, because human civilization will not even survive. जितने भी अभियान जाते हैं to look for life on other planets, the first thing that they're looking for is water, because life cannot survive without water. So many important messages coming from you, Ravinder. And of course, I'll come back to you for a couple of questions. But before that, I know Dr. Pankaj wants to ask Atul sir a couple of questions. So Pankaj, please go ahead. Okay, thank you, Ravinder ji. First of all, thanks to Ravinder ji for an excellent presentation. Thank you very much, ma'am. Multifaceted person you are, whether it is mountaineering, paragliding, scuba diving. I mean, I'm so many of the things where you are participating, and you are really an inspiration for others. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. So, Atul ji, आपका presentation was very nice, और जितने खूबसूरत आपने जगहें दिखाई जो हमारे participants हैं, हमारे students हैं, some of them may want to take mountaineering as a passion, not as a profession, but as a passion. So if they want to take up mountaineering as a passion, और कितना समय लगता है एक क्लाइम को पूरा करने में, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है उस पर जाने के लिए, क्या कोई भी जा सकता है कि कोई मिनिमम फिटनेस के पैरामीटर्स हैं कि वो पूरे होंगे तभी आप जा सकते हैं, एंड मतलब क्या किस तरह से प्रिपेयर करें, कैसे पता चले कि हम फिट हैं कि हम जा सकते हैं एवरेस्ट के ऊपर? पंकज जी, एवरेस्ट पे जाने के लिए तैयारी लंबी चाहिए होगी, लेकिन शुरुआत कोई भी कर सकता है। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे ट्रैकिंग की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वो भी ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बड़े शूस्ट्रिंग बजट पे आप पहाड़ में जाके चलना फिरना शुरू कर सकते हैं। माउंटेनियरिंग, सीरियस माउंटेनियरिंग के लिए आपको स्किल्स की जरूरत है, तो 4-5 ऐसी संस्थाएं हैं जो माउंटेनियरिंग के कोर्सेज कराती हैं और वो हेवीली सब्सिडाइज्ड हैं। एक तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी की है, जहां संतोष जी ने भी मेंशन किया। दूसरी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है दार्जिलिंग में। एक पहलगाम में है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। एक मनाली में है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ डमास, पहले कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे है। एक दरांग में है अरुणाचल में। सरकारी संस्थाएं हैं और 70-80-90% तक सब्सिडाइज्ड हैं। इनके बेसिक कोर्स होते हैं 4 हफ्ते के, और उसमें अगर A ग्रेड मिलता है आप एडवांस कोर्स कर सकते हैं। उन कोर्सेज करने का फायदा ये है कि आपको स्किल्स आ जाती हैं, इक्विपमेंट का इस्तेमाल, क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं, और एक ये क्लैरिटी आती है कि मुझे इतना हार्डकोर माउंटेनियरिंग करने में इंटरेस्ट है कि मैं सॉफ्ट ट्रैकिंग पे रुकना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है अच्छा, जितने भी पहाड़ी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां से अगर आप शहर में भी रुकते हैं, आसपास चलने के बहुत स्थान होते हैं, तो ट्रैकिंग से शुरू करके माउंटेनियरिंग होनी मुमकिन है। और इन्हीं के जरिए आपकी फिटनेस भी सुधर जाएगी, चलना शुरू करेंगे, एहसास भी होगा कि कितना चलने के काबिल हैं, और चलने से बेहतर भी हो जाएंगे चलने में और चढ़ने में। तो शुरुआत करना जरूरी है। And at any age, I mean, age is no barrier.
एट एनी एज, मैं जब था 2008 में एवरेस्ट पे, तो 70 साल के एक जापानीज आए थे, वो एवरेस्ट चढ़ के गए। मैंने अपने 50 साल के बर्थडे को मनाया 50 किलोमीटर की दौड़ से काठमांडू में, नेपाल में, अन्नपूर्णा के आसपास, और 51st बर्थडे को मनाया 100 किलोमीटर दौड़ के रन ऑफ कच्छ में। लेकिन जब भी मैं वहां गया तो मैं अन्नपूर्णा गया था बहुत खुश होकर कि 50 साल की उम्र में मैं 50 किलोमीटर दौड़ के आऊंगा। वहां मुझे 65 साल की लेडी मिली, ग्रीस से आई थी, और वो 100 किलोमीटर दौड़ रही थी। तो मुझे लगता है जैसे रविंद्र ने कहा है कि ये लिमिटेशंस मैनमेड हैं, ये हमारी सेल्फ मेड लिमिटेशंस हैं कि इस उम्र पे मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है लोग बहुत लंबी उम्र तक बहुत कुछ करके दिखा देते हैं। तो आप शुरू कीजिए पंकज जी। अब पंकज, मुझे लग रहा है कि हमें कल सुबह अपने रनिंग शूज पहनने ही पड़ेंगे, इतनी सारी इंस्पिरेशनल बातें सुन के सबकी। एक सवाल संतोष जी आपसे पूछ लेती हूँ। आपने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस बताए, पर मुझे ये बताइए, जब आप सबसे ऊपर जाते हैं वहां तो ऑक्सीजन होती नहीं है, तो आप बोलते कैसे हैं, सांस कैसे लेते हैं? बिकॉज जब आप गियर मुंह से उतार के ऑक्सीजन वाला वो मास्क उतार के बोलते हैं, तो कैसे बोलते हैं टॉप पे? और फिर एक कई बार छोटे बच्चों के दिमाग में जरूर सवाल आता है कि आपको अगर वॉशरूम जाना हो तो कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं? अगर ऊपर जाके पानी जम ही जाता है तो उस पानी को आप पीते कैसे हैं? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं, वो पूछ भी रहे हैं। तो कैसे करते हैं ये सब कुछ ऊपर जाके? तो आप म्यूट पे हैं संतोष जी, म्यूट। मुझे लगता है उनको कोई दिक्कत आ रही है। संतोष जी आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिए संतोष जी। वो कह रही है कि शायद अनम्यूट करने नहीं दे रहे उनको। आप जो नहीं, ऐसा नहीं है। फिरोज, कैन यू जस्ट हेल्प टू अनम्यूट फ्रॉम द बैकग्राउंड प्लीज? मुझे मैसेज आ रहा है अनम्यूट करने के लिए, जबकि मुझे इशू नहीं है। आई एम गेटिंग अ मैसेज। संतोष जी को अनम्यूट करने का मैसेज। संतोष यादव जी की स्क्रीन। हाँ जी, तो जितने में उनका अनम्यूट हो रहा है, मे बी रवि तुमसे मैं एक सवाल कर देती हूँ। 1 मिनट मैम। यस मैम। तो रवि, 3 times एवरेस्ट डन, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, और ऑफ कोर्स यूपी में इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, तो अभी तो तुम्हारे हैंड्स फुल हैं। लेकिन व्हाट इन एडवेंचर, व्हाट आर यू? पहले हो नहीं रहा, बोलो। Basically, ma'am, I believe that whatever I have learned during my Everest climb and other mountaineering, that I should use during my administrative job. और आगे फिर जैसा मौका मिलेगा, क्योंकि एडवेंचर है, फिटनेस से जुड़ा हुआ है, सब लोग जल्दी रहना चाहते हैं तो करेंगे, बट जो एडवेंचर का एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में यूज करना सबसे हमें लगता है महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, माउंटेनियरिंग फेयरनेस सिखाता है। जब स्पेशली जब एवलांच से बच के आ गए तो वो एक इनर कॉन्फिडेंस देता है, और वो कॉन्फिडेंस मैंने देखा कि कोविड के टाइम में, स्पेशली 2021 मिडिल अप्रैल टू मिडिल मई में पीक पे था कोविड, when even family members and relatives were scared of going to close to infected patients as well as dead body. तो हम लोग हमारे मन में डर नहीं था। लिटरली आई एम टेलिंग यू, यू कैन सी माय फेसबुक, हम लोग कोविड हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में जाते थे, एंड आई मेट एटलीस्ट 100 इन्फेक्टेड पेशेंट्स क्लोजली, 1 मीटर या थोड़ा सा उससे कम। आई यूज्ड टू गेट कॉल फ्रॉम मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स कि ज्यादा हीरो मत बनो, कुछ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्या था कि ओवर लास्ट ईयर 2020 मैंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं और मुझे कुछ नहीं होगा। इट वाज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, इट वाज लाइक कि वही इनर बिलीफ है कि जब आप इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स लिए हो तो आपको नहीं हुआ। तो आई बिलीव कि माउंटेनियरिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में यूज एक हमारी प्रायोरिटी है, और आगे जैसा मौका आएगा वैसा अभी उससे मतलब पूरा ही छोड़ा नहीं है। आगे अगर मौका आएगा तो जरूर जाएंगे। थैंक यू। संतोष जी आपका अनम्यूट हो रहा। अरे आप फिर से म्यूट हो गई हैं, आप बीच में अनम्यूट हुई थी।
मुझे लगता है उनका टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो अतुल जी आप हमारे जवाब, हाँ हो गया, ठीक है। आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न किया, और विशेषकर मैं तो बहुत कम ऑक्सीजन पे रही वहां पे भी। मेरा बिल्कुल हाफ पे ऑक्सीजन मैंने रखा था। तो सब लोग काफी मुझे कह रहे थे कि आप बिना ऑक्सीजन के भी रिकॉर्ड बना सकती है। मैंने कहा मैं यहाँ रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं आई हूँ, और बाकायदा मुझे पूरी टीम की सेफ्टी का ख्याल है। तो यदि मेरी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती तो किसी को भी परेशानी हो सकती है, तो इसलिए मैं रखा। लेकिन मुझे इसके साइड इफेक्ट्स पता थे, इसीलिए मैं काफी कोशिश कर रही थी कम से कम ऑक्सीजन लूं, क्योंकि हमारे लंग्स जो अभी कोविड में भी सबसे ज्यादा समस्या उसी बात की हुई कि लोग ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाह रहे थे कि सिलेंडर मिले उनको, लेकिन सिलेंडर इज द रियली बहुत साइड इफेक्ट होते हैं उसके कि हमारे लंग्स ही काम करना बंद कर देते। तो ये मेरे लिए बहुत फायदे वाली बात थी कि मैंने बहुत कम ऑक्सीजन पे रखा था। इसीलिए मैंने अपने एक कलीग को भी ऑक्सीजन दे दिया था अपना। ऑन टॉप ऑफ एयरवेज से मेरे कलीग थे मोहन सिंह, उसका ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गया था और उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, एकदम ब्लू चेहरा हो गया था। तो और वो चल नहीं पा रहा था। तो मैंने इमीडिएटली आई सॉ हिज सिलेंडर, रेगुलेटर में देखा तो ऑक्सीजन ही नहीं है और ऊपर से मास्क लगाया हुआ था। तो इमीडिएटली आई रिमूव हिज मास्क एंड इमीडिएटली मैंने अपना मास्क उसके मुंह पे लगाया और उसको फिर हम सेफली नीचे लेके आए। तो ये है। दूसरी बात है कि पानी जम जाता है, तो मेरे लिए तो ये था कि मैं पानी, सिर्फ हमारी कुछ बोतल होती थी जिसमें पानी गर्म रहता है और हम लोग बर्फ से पिघाल करके पानी बनाते थे वहां पर। और हमारा एक एरिया होता था जिस साइड को कोई नहीं जाता था, मीन की हम स्टूल पास करने के लिए या यूरिन पास करने के लिए जाते थे, उस एरिया को हम सेपरेट छोड़ते थे और वहां से हम पानी लेके आते थे बर्फ खोद करके और उसको हम पानी पिघाल के बनाते थे। ऑफ कोर्स ऐसी सी सिचुएशन आती है, आप बिल्कुल लड़कों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जब आप ओवरहैंग में या फिर कहीं पे आप फिक्स रोप में अटके हुए और वहां पे आपको नंबर 1 नंबर 2 जाने की नौबत आ जाए, तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता था। और उस वक्त हम एक दूसरे को कहते थे कि तुम इधर देखो, तुम इधर देखो, और हमें खैर ये एक बहुत चैलेंजिंग होता था, लेकिन हम लोग हर चीज की समस्या का हल होता है वो कर लेते थे। और खान पान की जहां तक बात है, मैं प्योर वेजिटेरियन फूड लेती हूँ और बिल्कुल आज मुझे समझ में आता है कि मैं बहुत बॉयल खाना लेती थी, हॉस्टल में भी थी तब, वो कितना हेल्पफुल था। इनफैक्ट मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाती हूँ और वो मुझे कितना मदद किया, क्योंकि एक्शन स्लो होता है और हमें वहां पर पहाड़ों में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जो मैं पहले भी बताया कि हमें योग में वहां से अपनी जागरूकता को लाना पड़ता है, वहां हमेशा जागरूक रहना पड़ता है। हमें एक पल भर के लिए भी वी हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट। ये एक बहुत बेनिफिट है एक माउंटेनियर के लिए, और जो सबसे बड़ी शिक्षा मैं समझती हूँ कि अलर्टनेस, जागरूकता बहुत जबरदस्त एक माउंटेनियर में आती है, और वो मेरे ख्याल से आज हर इंसान की आवश्यकता है, जरूरत है उसकी। तो मैं ना मैगी खाती थी वहां पर मैं तो सिर्फ बिल्कुल सिंपल भोजन, कम भोजन लेती थी। मैं जब पुलिस अधिकारी भी थी तो जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी मसूरी में, तो मेरे बैचमेट्स ये सोचते थे ये खाती क्या है, हमारे साथ तो भोजन चिड़िया के जैसे करती क्या है। क्योंकि मेरे लिए जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी पुलिस की, तो मैंने मेन के स्टैंडर्ड पे किया था। जो फिजिकल स्टैंडर्ड था वो मेन का था। मेरे लिए जब तक वुमेन का डिसाइड होता है तब तक मेरी ट्रेनिंग हो गई थी। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि मेरे बैचमेट्स कहते थे कि तू करती क्या है, कहाँ खाती है, क्या करती है। तो मेरे कमरे में चेक करने जाते थे कि मैं कोई स्पेशल कोई डाइट तो नहीं लेती हूँ। तो हमारे उनके सामने तो कहते मैं नॉर्मल जो डाइट वो ले लेते, तो उससे बहुत कम लेती थी। तो ये बेसिकली जो बताने का तात्पर्य ये है कि नॉट टू बूस्ट माई सेल्फ और टू प्रेज माई सेल्फ, लेकिन ये हम बताने का तात्पर्य यही है कि हमारे जो भाव है वो कितने इंपॉर्टेंट है, वो कितने आपके द्वेष रहित हैं आप, और वो आपके अगर आपके मन की शक्ति कितनी बड़ी है, कहते हैं मन के हारे हार मन के जीते जीत, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि हमें ये डाइट नहीं मिला, वो डाइट नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन की शक्ति जो है वो सबसे मजबूत है, और उसको अगर आपने बना के रखा है तो आप 10-10 दिन बिना सोए रह सकते हैं, 10 दिन बिना खाए रह सकते हैं, और ये मैंने किया है ऑलरेडी। इसलिए मैं अनुभव के आधार पे बोलती हूँ। जी, थैंक यू।
Thank you. So Pankaj, as we had anticipated कि ये session 1 घंटे में तो खत्म हो ही नहीं सकता. In fact, 4:45 हो चुके हैं. We are almost at the double time of our hoped and proposed time. So clearly we have so much more to ask of all three incredible Indians, but we do need to come to an end of the session. But before we do that, I'm going to ask Ravinder, your one last message, particularly when we are looking at youth and looking at tourism, which is not just an experience, but it's a huge employment generator. It conserves heritage, it conserves culture, and does so much. One last message for everyone, Ravinder. Yes, ma'am. What I understood the message for the youth, right? Okay. So as time is already almost over, so I'll give 3 words now: conceive, believe, and achieve. Conceive is people should not be disheartened, irrespective of their background or financial status or anything. They should always dream high. That is conceive. Believe it. Plan sustained effort with inner belief, with positive visualization. Just because positive visualization I have also followed in my life, plus I have described in detail with all scientific explanation in my book. So I have inner belief that whatever you are planning, whatever you are dreaming, if you pursue with sustained hard work, with positive visualization, you can always achieve it. So to all my friends who are connected online, please remember these 3 words: conceive, believe, and achieve. Dream big, pursue that dream with inner belief, and I'm sure you can achieve it. Thank you. Thank you, Ravinder. Atul sir, to you, before I ask you to leave your last message for everyone, what is the most favorite thing that you cook, sir? I cook Maggi noodles for my daughters. They love it. So you're not letting the secret out yet. That you are very special recipe hai. I meant it seriously. Okay, so we are coming to Hyderabad and having it sometime. But on a more serious note, sir, one last message from you. We would have loved to continue, but the time is where it is. So a last message from you, sir. मुझे इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैंने कई ऐसे लोगों के बारे में स्टोरीज पढ़ी हैं. विक्टर फ्रैंकल है, मैन सर्च फॉर मीनिंग किताब है उनकी. एक फिलिप क्रोइजो है जिन्होंने दोनों हाथ दोनों पैर कटने के बाद इंग्लिश चैनल को स्विम किया है. I'll send you a link to his story. Both legs, both hands were cut off after electrocution. He had one elbow left and one knee left. And after about 10-14 years of practice, he swam the English Channel. तो मैं ये देखता हूँ कई बार हमारे जो कंस्ट्रेंट्स, हम उनको कंस्ट्रेंट्स मानते हैं, पैसे की कमी है या अपॉर्चुनिटी नहीं है, एनीथिंग, हेल्थ नहीं है, फिटनेस नहीं है, दे आर वेरी माइनर. कई लोगों ने दिखाया है कि ह्यूमन स्पिरिट में कितना पोटेंशियल है. तो मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि इस समय दुनिया इतनी खुली है, इतने वोकेशंस, इतने करियर्स, इतना कुछ पॉसिबल है. लेवल प्लेइंग फील्ड है. यू कैन बी अ यूट्यूब सेंसेशन थ्रू सोशल मीडिया इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू वीक्स. You can be creative. You can have so much so many achievements. So you need to work hard for it. There are no shortcuts. So ये now generation है, attention span कम रहता है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज को अपना single pointed focus बना लेते हैं तो सफलता मिल सकती है, या अगर फेलियर होता है उससे आप बहुत कुछ सीख के पहले से कहीं ज्यादा empowered हो सकते हैं. So you need to, I'll corroborate what Ravindra just said. Discipline. Go for it with whatever you have. Go for it. Lovely message. Pankaj, you want to say something to all the children? So, last message, Santosh ji se bhi le lete. What is your last message? अनुभव ही सफलता है. सबके लिए मैं आग्रह करूंगी, अनुभव ही सफलता है. इनफैक्ट थैंक यू. सबसे बड़ी चीज है, अगर जिसके पास अनुभव है वो कभी भी किसी चीज के लिए उसको माने सब कुछ है उसके पास. जी, थैंक यू. बिल्कुल सही कहा आपने. थैंक यू वेरी मच. Thanks to all the panelists. Thanks to all the participants who have joined here. A quiz is waiting for you and the prizes are waiting for you. So do attempt the quiz. Quiz is based on the talks we had during this episode, and I'm sure you heard everything very, very carefully. And once you just log out of this webinar, you can attempt the quiz. And do it fast because there are prizes for the first 1,000 correct entries.
So start attempting now. Vinderji? Yes. And I also want to add something for all those who are going to take this quiz, that you will be getting some mementos from Incredible India in your mailboxes. But more than that, over a period of time, we are going to pick at least, I'm not going to say the number, a small bunch of you who will really be doing it fast. We are going to take you for actual physical trips around our beautiful country. And the first rounds of these trips are going to take you to the beautiful part of the northeastern part of our country. So start packing your bags, start packing your rucksacks. And if you need to lose some weight, because we'll take you trekking, do start doing that. Start having all the boiled food that Santoshji talked about. Do get back to discipline that Atul sir has spoken about. And Ravi has already shown you the pictures, what desk jobs can do to you. So do study, but then do keep running, do keep walking. The weekend is just ahead of you. So keep doing all that. But at the same time, viewers, we are still telling everybody through all our sessions, COVID is not exactly behind us totally yet. So do keep wearing your masks. Do keep 2 गज की दूरी, do sanitize your hands. It's very important that जो पिछले 1.5 साल से इतना एहतियात करके हमने कोविड को पीछे करने की कोशिश की है, उस पूरी प्रोग्रेस को लूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज टूरिज्म के लिए सबसे अहम चीज है ट्रैवल, और ट्रैवल के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब सेहतमंद रहें, हमारी कंट्री सेहतमंद रहे। इसे अपना ध्यान भी रखिए, अपने साथियों का, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखिए और देखते और दिखाते रहिए अपना सुंदर अतुल्य भारत। सो इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद टू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, ऑल 3 of you, in fact my special personal thanks, क्योंकि हमने आपको मौका ही नहीं दिया था तैयार होने का। आप तीनों ने एक ही बार कहने से हमें ज्वाइन किया है एंड हम आपको दोबारा भी परेशान करेंगे। सो माय स्पेशल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, my 3 panelists, AIU, NEGD, for supporting us on the platform, and we will keep you posted about our next episode. Namaskar. Thank you, ma'am. Thank you very much. Namaskar. Thank you, everyone. Jai Hind. नहीं ना